Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are well. My name is Shanzi Sabswari and I am an artist and art writer. And welcome to the first session of the Art Lounge Talks. Let me tell you a little about the talks because today is our first session. So I started these talks because over the last few years I have seen or met a number of very, very interesting, talented people who are doing amazing things from different various fields. And having conversations with them, I've realized that there are so many things that we don't know about them or their careers or how these careers work. And I had seen a number of talks about pertaining to very specific areas, but generally I felt like there should be a session that talks to creative people from various fields. So I thought of starting these sessions, and because I myself really enjoy watching like talks or Insta live sessions, I like listening to podcasts, so I thought why not start my own. So today we have a very special guest on board, and I will first add him to the session and then I will introduce him formally. Okay. I have sent you a request. Assalamu alaikum. Assalam, कैसे हो? कैसे हैं आप, sir? So to everyone who's watching, oops, the video has paused a little bit. I don't know if this is just for me or everyone. Okay, to everyone who's watching, and I'm sure everyone knows, but this is Mohammad Zishan and Ambal. Hello, Ambal. His daughter, adorable. So Mohammad Zishan ka main jaldi se introduction de दूं. Mohammad Zishan is a critically acclaimed visual artist from the National College of Arts who has garnered extensive national and international recognition for his work. Currently, he's adjunct faculty at Indus Valley School of Art and Architecture. And Zishan's early foray into art included, he started off as a cinema board painter. He's from Mirpur Khas. And ab unki jo kaam hai, it's in very, very major collections of the world, including the Metropolitan Museum of Arts and the British Museum, London. And he was also the curator, KB19, and he has many other feathers under his cap, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. कैसे हैं आप, Zishan? मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से. तुम कैसे हो? Thank you for the invitation. No, I'm very happy to have you as my first guest because you have been such a support to me and my friends in the art world. He is like a mentor of mine, and he is someone who you can go to for great advice. So I'm putting that out there. So let's start the session with a question about a general question, because अभी ये जो talks हैं, I want them to be not just for artists, लेकिन कोई और शायद किसी और फील्ड से हो जिसको पता करना हो what the art world is about, उनको भी थोड़ा समझ आए. तो can you explain to us that आपकी समझ में a career in the art world है क्या? मतलब अगर उसको condense करके समझाया जाए to someone from the someone from not from this field, what is your? देखो, जो इस फील्ड में नहीं है वो तो आउटसाइडर है, जो है तो वो तो इनसाइडर है. उसको समझाने की जरूरत, उसको सिर्फ उसको बताने की जरूरत है जाके फटका मार. पर आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगता है कि आर्ट को और आई थिंक टुडेज आर्ट वर्ल्ड बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आर्ट को हम ना पेंटिंग ना किसी एक चीज पे रखें. आर्ट का जो पूरा फ्रेम है बहुत बड़ा है. उसमें कहते हैं एक्टर भी है, सिंगर भी है, और ये जब इन लोगों को लगाते हैं ना कि राइटर भी है, पेंटर भी है, स्कल्पटर भी है, तो ये सारे जब मिलके आते हैं तो फिर समझाना जो है किसी को वो मुश्किल नहीं होता. और फिर उसकी रेंज होती है, जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा होता है. तो आई गेस वो जब तक हम लोग इस चक्कर में फिरके वारियत में लगे रहेंगे ना, तब तक समझाना मुश्किल हो जाएगा. फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल. आई थिंक जब आप इस दुनिया में आते हैं तब आपको उसके न्यूएंसेस समझ आते हैं, वरना आपको एक इतना समझ आता नहीं है. But so let's go back to your early life. It's a very interesting, significant story. आप Mirpur Khas में, you were born there, you were brought up there, and you started off. Can you just tell us कि आप उधर से NCA तक की कहानी आप briefly, अगर आप बता सकते हैं viewers को, how did you start and how did you reach there? Yeah, and
खास में थोड़ा सा बताऊं, मेरे को खास में बहुत ही एक पता नहीं मेरा इंटरनेट खराब हो। जी थोड़ा oops can everyone see the video and can anyone tell us कि ये मेरी वीडियो नहीं चल रही या सर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है? Not sure. Him on board. Okay, we're gonna try to get him on board again. One second. ठीक है, मैंने उनको वापस रिक्वेस्ट भेजी है. हाँ हाँ, अब आ गया, दिख रहा है? ये हाँ, back on track. हाँ, Yes. तो ये किसने लिखा है सर का इशू है, अब क्या करें यार। मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं। अच्छा यार, मैं मेरे को खास में बहुत ही शरीफ बच्चा था, मतलब सुबह जल्दी उठना, वर्जिश करना, स्कूल डेली जाना, हमेशा स्कूल में टॉप करना और शाम को गेम्स Fantastic. खेलना। और Sir, I ये can स्टोरी totally मुझे लग believe रहा that. है, Not. मुझे लग रहा है कि स्टोरी नहीं बन पा रही, सॉरी यार। नहीं बन नहीं पा रही. Relate नहीं कर पा रहे आज से लोग. नहीं यार, मेरे को खास में भी मैंने दिल खोल के आवारागर्दी की है, जो आज तक करता हूँ, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं जो जैसा जी. था वैसे तक घूम फिर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये रही कि मुझे उस्ताद वहाँ बहुत अच्छा मिला, जिनका नाम है मिर्जा इरशाद बेग, जिनके साथ मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन हासिल की। एंड Okay. उसकी वजह से मैंने बहुत सी चीजें उनसे सीखी, बिसाइड आर्ट, वो रहना, लोगों से मिलना, बात करना। इवन दो मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ कि आज अगर मैं किसी कलेक्टर से बात करूं या किसी गैलरी से बात करूं या क्यूरेटर से बात करूं, तो वो ही सेंसिबिलिटी है, सिर्फ वर्डिंग चेंज होती है, जो कि हम शायद उस दौर में किसी, और जो हम कहते हैं ना, ग्राहक से बात करते थे जो कि पोर्ट्रेट बनाने आए। Okay. तो एक और चीज है जिसने मुझे मेरे लिए बहुत, मैंने जिससे बहुत पेशेंस और पैशन सीखा, वो ये था कि मैं उस दौर में मुर्गे लड़ाता Oh. था। एंड मुर्गे बिलीव लड़ाते मी, थे. हाँ, मैंने उससे जितना पेशेंस और पैशन सीखा है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने एक मुर्गा पाला, 2 साल 2.5 साल बाद उसको लड़ाने लेकर गए। आई नो ये बहुत ही बुरी चीज है, मगर जो करता था बता रहा हूँ, और वो हार गया, 10 मिनट Interesting. 20 मिनट में हार गया। सो देन यू हैव टू तो ये वेट फॉर योर कंपटीशन नेक्स्ट होता है टर्न। जो सब देख रहे होते हैं. तो फॉर हाँ, ये सब देख कॉन्टेक्स्ट रहे ये हो, हाँ कंपटीशन तो कोई और अपना मुर्गा लाएगा और आप अपना लाएंगे एंड लोग लड़ाएंगे आप दूसरों के सामने. हाँ। तो ओके. अब वो हार गया, तो देन यू हैव टू वेट फॉर योर नेक्स्ट टर्न, और या आपने दूसरा मुर्गा तैयार करना। तो वो जो, और फिर तैयार करने के लिए जो भी उसके मराइल होते हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उस टाइम में वो बहुत ही बुरी चीज मानी जाती थी, या कि कोई इतना अच्छा नहीं लिया जाता था। पर मैंने ये चीज बड़ी सी, वो चीज मुझसे बड़ी, मुझे लगता है कि उस चीज ने इंस्टॉल की मेरे अंदर कि अच्छा ठीक है, अब अभी हम सब आर्टिस्ट के साथ ये होता है, और आई वुडंट से कि सबके साथ होता है, मेरे साथ शायद ज्यादा हो गया होगा ये किसी का, कि आप कभी कभी शो तैयार करते हैं, वो इतना इतना वेल रिसीव नहीं होता किसी भी लेवल से, होता शायद है. किसी को पसंद नहीं आता या बिकता नहीं है, कोई भी वजह। तो देन यू कैन वेट एंड यू कैन कम बैक, और कि ठीक है मैं दोबारा जाऊंगा, दोबारा तैयारी करूंगा, दोबारा आऊंगा। Resilience. हाँ, तो वो Resilience जाके बढ़ती आना, है. हाँ, तो वो आई थिंक हाँ. दैट्स आई लर्न अ लॉट फ्रॉम, कि जो मैं मुर्गे लड़ाता था। Amazing. That's very cool. And you also painted like बहुत briefly अगर आप बता दें, you also painted billboards at that point. Did that also help you in your career later on? Scale आ, के लिहाज से या कुछ patience something? फिर एक चीज जिसने मुझे बड़ी जो सीखी वहां, क्योंकि जब आप बात करते हैं ना कि किसी भी कमर्शियल वेंचर की, कमर्शियल इन द सेंस के उस टाइम में जो कि आप रोड पे जाके कर रहे हो, तो उसमें एक खास किस्म की आपको बोल्डनेस चाहिए होती है, बिकॉज व्हेन यू आर पेंटिंग समवन विल से कि अच्छा है, बुरा है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, काला रंग नहीं लगाया, पीला नहीं लगाया, ये तो फलाना नहीं लग रहा।
ना आप फेस करते हो और आपने उन्हीं के दरमियान राइट खड़े होकर काम करना है और राइट उसी बिल्कुल एनवायरनमेंट में काम करना है। तो आज भी वही चीजें हैं। मुझे लगता है टेक्निक से ज्यादा कभी कभार कुछ चीजें एनवायरनमेंट सिखाती हैं, जो कि आज भी आप जब कर रहे होते हैं ना, कोई भी अगर आपको अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट दे रहा है तो यू नो कि अच्छा कैसे हैंडल करना है, कब इग्नोर करना है, कब नहीं करना है। राइट तो राइट समझ आ आई फील के बिल्कुल उस टाइम से मैं डिस्प्ले था, वो काम डिस्प्ले हुआ हुआ था, पर वो बेशक वो कमर्शियली क्यों ना हो, मगर वो डिस्प्ले था। बिल्कुल डिफरेंट था ओके सो देन सर यू आफ्टर दैट यू वर एट एनसीए तो उसका थोड़ा सा आप बताएं उधर के टीचर्स उधर के मेंटोर्स उन्होंने आपको कैसे हाउ डिड दे हेल्प यू इवॉल्व आ, यार एनसीए पूरा एक तो वो जगह ही कुछ, वो जानवर ही कुछ और लगा मुझे, समझ में नहीं आया कि हम कहाँ आ गए, कौन सी जगह आ गए, दुनिया ही नहीं है। जी और उन दिनों में आई थिंक 2000 था, तो वो पता नहीं, वो पूरा नई सदी शुरू हुई थी जिस बिना पे बहुत सारी चीजें हो रही थी कॉलेज में, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता हम्म था, कभी कोई इवेंट हो बिल्कुल रहे हैं, कभी म्यूजिक नाइट हो रही है, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये पढ़ने आए हैं, नहीं पढ़ने आए हैं, क्या हो रहा है। पर इंटरेस्टिंग था। और एक चीज जो एनसीए में जो आप मैं अपने कुछ मेंटोर से पहले एक और एनसीए के एक एटीट्यूड में मेंटोरशिप है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि आप ओके किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप हाँ कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी हुलिये में हो, मगर अगर आपने काम अच्छा किया है तो आप क्लास के हीरो हैं। आप अच्छा तो वो जो एक आपके अंदर बूस्ट आता है ना, या अक्सर जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी आई स्टिल रिमेम्बर नहीं कि कुतुब साहब अक्सर की क्लास में, मतलब ड्राइंग की क्लास में ये होता था कि जिसकी ड्राइंग अच्छी हो, जिसके मार्क्स अच्छे हो, तो उसका काम कॉरिडोर में लग जाता है। तो आपका हम्म लगे या नहीं लगा हो, बट यू फील कि अच्छा 10 लोग मेरा काम देखते हुए जा रहे हैं, तो काइंड ऑफ जो आज हम एग्जीबिशन करते हैं या बूस्ट मिलना, तो ये एनसी का एटीट्यूड था जो कि आपको हीरो बनाता है, आपको हिम्मत हम्म देता है और आपको कहता है कि नो यू आर समवन, बिसाइड राइट कि आप दैट्स कहाँ से आ अमेजिंग रहे हो, कैसे बोलते हो, कैसे नहीं बोलते हो। तो बहुत जिस तरह से इम्पोर्टेंट चीज है आई स्टिल रिमेम्बर के थियरी के पेपर में मैंने मैंने उर्दू में दिया और आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स ऑल्सो। तो वो जो चीज थी ना, कि वो जो कुछ ऑलरेडी हमारे सोचे हुए होते हैं कि ये नहीं होगा तो ऐसे नहीं कर सकता, मैं कैसे कोप हम्म करूंगा, मेरे पास क्या है, ये नहीं, वो चीजें बड़े आराम से वो हटा देता है। जिसके बाद अच्छा आपको वो एक इतना पावर देता है कि जिसके बाद आप रेडी होते हो कि हाँ मैं सबको फेस कर सकता हूँ, मैं कुछ हूँ, मेरी amazing कुछ अहमियत है। amazing एंड द amazing टीचर्स and I'd like to आई sorry वुड go लाइक on टू टेक नेम फ्यू, जिनमें आर्यन नईम है। और आर्यन नईम को मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ क्योंकि वो मेरे को खास से हैं। और जब आप मेरे को खास से हम निकल रहे थे तो वो ऐसे ही थे जिस तरह से आ, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो मैं मार्क का नाम लूं या मैं फलाने की नाम लूं तो किसी को, तो हमारे लिए वो एक रोल मॉडल थे। और अच्छा उन्होंने जाके इतना अच्छा amazing काम किया कि हम लोगों को लगा कि हम भी जा सकते हैं, या जो हम right फील्ड चूज कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, इसकी वर्थ है। और फिर मुझे इमरान कुरैशी मिले, ही वॉज वेरी गुड टीचर, उन्होंने बहुत सी जगहों पे हेल्प किया। तो देयर वाज लाइक, फिर उस्मान से थे। तो डिफरेंट टाइम टाइम में ना डिफरेंट टीचर मिलते रहे, मतलब डिफरेंट क्लासेस में, टाइम फ्रेम में। पर बिल्कुल बिल्कुल यस, देयर आर टू टीचर्स जिनका मैं, आरिम नईम और इमरान कुरैशी, जो कि yeah मैं सोचता हूँ कि उन्होंने and रोशन। and they're amazing artists and extremely successful artists in their own right and बेस्ट होता है कि जब आप ग्रेजुएट भी कर जाएं आपकी रिलेशनशिप उनसे अभी तक है मतलब बहुत स्ट्रांग है हम्म एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग जिस तरीके से आई वुड से आप और हमारे कुछ आईवीएस के टीचर्स ने हमारे लाइफ में अभी भी हैं इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स यू स्टिल देयर एज मेंटोर्स आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर आर्टिस्ट बिकॉज ऑफन हमें लगता है कि हम आर्ट की दुनिया में बिल्कुल लॉस्ट हो गए हमें पता नहीं अब क्या करें हम बिकॉज देयर इज नो रूल बुक राइट एंड ये भी तो नहीं है कि अदर फील्ड्स की तरह कि आपको पता हो कि अब आप प्रमोट होके इधर जाओगे फिर आपका नेक्स्ट लेवल ये नेक्स्ट there's not you just have to make your own path and जब support होती है teachers की I think that's a really really helpful thing so apart from that okay अब आपको अपनी तारीफ करनी होगी थोड़ी सी which हम्म। qualities do you think you have that make you a successful artist क्वालिटी क्या है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ,
आई गेस आइए एक फिर भी आप मैं इसका बहुत ही बोरिंग और सीरियस आंसर दूं कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं ये मुझे नहीं पता, बट एक चीज मुझे पता है कि मैं एक चीज मैंने कंटिन्यूस रख रखी कि मैं डेली काम जरूर डेली काम करते हैं आप? ओके। करता। सो वाह। आई गेस मुझे लगता है कि ये जो भी सक्सेस है या जो भी सेटिस्फेक्शन है मुझे वो यही है कि मैं डेली काम करता हूँ। एंड बाय काम यू मीन आप पेंट करते हैं हर रोज? हाँ जो भी काम या यू कैन आर्ट से से कोई मैं हाँ। आपको तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मेरा एक टाइम फ्रेम है कि रात में मैं यूजुअली 12 साढ़े 12 के बाद जब तक फजर की अजान हो, अगर वो वाह। गर्मियां होती हैं तो वो शॉर्टर टाइम हो, जैसे सर्दियां होती है तो ज्यादा होती है, बट जैसे ही फजर की अजान होती है इसका मतलब मेरा टाइम ऑफ हो गया। तो ये आप टाइम जो फजर है, पे पढ़ के सोते हैं ना सर? यार ये तो बड़ा तुमने मुश्किल सवाल कर लिया। मुझे पहले वाला कंप्लीट कर ले। तो सुन के जरूर सोता राइट। दैट्स दैट्स हूँ। अमेजिंग, दैट्स डेडिकेशन, दैट्स तो डेडिकेशन। ये टाइम फ्रेम है जो मेरा और मेरे स्टूडियो का है। हम्म। रिगार्डलेस अमेजिंग। कि मैं उसमें पेंट कर रहा हूँ, उसमें नई कोई कॉम्पोजिशन सोच रहा हूँ या अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, बट जी, यूजुअली मैं कुछ टाइम कर रहे देता हैं। हूँ। हाँ। बिकॉज ये एक मुश्किल चीज होती है काफी आर्टिस्ट के लिए। कभी कभी ये होता है कि आज हमारा फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है तो नहीं कर सकते, लेकिन मे बी इट्स अ यूजफुल टूल फॉर अस टू नो कि नहीं, अपने आप को पुश कर लो। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मे बी ओवरऑल इट विल बी हेल्पफुल। इवन इफ आपने कोई ऐसी चीज ना बनाई हो या ऐसा काम ना किया हो जो आपके ऐसा होगा कि आप कहीं डिस्प्ले करें या सेल करें, इवन देन मे बी एज अ प्रैक्टिस इट्स वेरी हेल्पफुल, आई थिंक। सो दैट्स अ गुड टिप फॉर आर्टिस्ट। ओके। अब ये एक सवाल है जो कि आई थिंक अभी कर लेते हैं तो आप, some significant experiences or achievements that you are proud of? There are so many वैसे तो। So आप क्या अभी ये सवाल का जवाब देना चाहेंगे या हम बाद में भी आ सकते हैं, if you want to give more detailed answer, but up to you। चलो बाद में आओ ना, मैं थोड़े ढूंढूं, मेरे पास कोई बाद में आते हैं। सिग्निफिकेंस ही नहीं है। No, कुछ ज्यादा ही जिसके जवाब है। ओके, लेट्स गो फॉर द अदर क्वेश्चन। सो अ डे इन योर लाइफ, जैसे बोलते हैं ना एक दिन जियो के साथ में, वो जो जियो पे वो रन थ्रू ऑफ द डे। तो आप हमें अब अपने अल्फाज से बताएं कि आपका सुबह जब आप उठते हैं या जब भी आप उठते हैं उससे लेके फजर तक आपका क्या रूटीन होता है ऑन एन अच्छा, मैं रूटीन मेरा अभी कुछ महीनों से चेंज हुआ है, उससे पहले कुछ और था। कुछ महीने नहीं, साल डेढ़ हो गया। आ, पहले मैं यूजली पढ़ाने जाता था। ओके। उसके बाद मेरा कोई पता नहीं होता था कि मैं कहाँ आऊंगा, कब आऊंगा, कैसे घर आऊंगा, आऊंगा भी नहीं आऊंगा। ओके। और ये कब बस की बात रात है? तक कोशिश, मैं समझ ले, देखिए 2 साल पहले तो मैं आई वॉज क्यूरेटिंग बिनाले, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म। 19 और 18 वॉज बिजी विद बिनाले। पर ठीक उसमें है, ये था कि सही। सुबह निकलता था, रात को कब आऊंगा, कब अपनी ट्रैवलिंग चल रही थी। पर मैं यूजुअल बता रहा हूँ, अगर हम बिनाले के टाइम फ्रेम को थोड़ी सी देर ठीक के है, लिए हटा सही। दें, तो सारा दिन कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कब हूँ, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। और रात को अपने स्टूडियो में कोशिश करके मौजूद होता था। फिर अमेजिंग। पैंडेमिक आया, तो उसकी वजह से सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हो गई, फिर क्लासेस ऑनलाइन हो गई, जाना कम हो गया। अब ये है कि क्योंकि बहुत ज्यादा मेरी क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो ओके। और मेरी बेटी भी है, तो मैं ज्यादातर टाइम अपनी जी। बेटी के साथ गुजारता हूँ। अमेजिंग। तो मैं यूजली अगर मेरी क्लास नहीं है तो अब का रूटीन आज आज कुछ काफी साल, एक साल हो गया कि ये है कि मैं सुबह उठता हूँ, अपनी बेटी के साथ होता हूँ, दोपहर को उसको उसकी नानी के घर छोड़ता हूँ। मैं क्यूट। जाता हूँ अपने दोस्त के पास, बहुत सारे आर्टिस्ट जानते होंगे, कासिम अली, गैलरी वन, वहां पे जाके चाय बिल्कुल। पीता हूँ, एक वो डेढ़ घंटा बेस्ट। उसके साथ बैठता हूँ, और घर आता हूँ। और फिर घर में अमेजिंग। ऐसे ही बैठा रहता हूँ। फिर शाम हो जाती है, अपनी बेटी को लेके आता हूँ, फिर उसके साथ घर में उसके साथ उसकी अमेजिंग। चीजें करता रहता हूँ। और या यूजुअली इस टाइम उसको 9:30 10 बजे सुलाना होता है, तो उसके साथ लेटता हूँ मैं भी, सुलाते हैं उसको। उसके बाद 12 बजे काम करता हूँ। तो काफी अच्छे से मेरी रूटीन यही है। तो ठीक है, बल्कि कुछ जबरदस्त। दिनों पहले हमारे कुछ फ्रेंड भी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा हाँ ये होता है, उठता हूँ, आंबल के साथ होता हूँ, उसको छोड़ता हूँ, चाय पीता हूँ, वापस आता हूँ, फिर थोड़ी देर बैठता हूँ, आंबल को लेके आता हूँ, फिर उसके साथ दैट्स होता सो हूँ। क्यूट। हाँ, No, nothing we much. can see that. I mean, this happens when you have a child, तो आपकी routine change हो जाती है। And I हम्म, still remember, like 3-4 साल पहले जब when Ambal came into your life, it was just a very adorable moment. तो ठीक है, ये तो आपका run through हो गया आजकल का। अच्छा,
अब ये आपको थोड़ी इमेजिनेशन यूज करनी, या फिर आपको ये, आई एम श्योर मे बी यू ऑलरेडी थॉट ऑफ दिस, कि अगर आप एक आर्टिस्ट नहीं होते तो आप कौन से करियर में होते? व्हाट डू यू थिंक? यार देखो, होता अगर मैं उस टाइम से लगाऊं कि जब तुम बेवकूफ खास वाले टाइम में देख रही हो तो एक अलग है, वरना अगर मुझसे अभी पूछो कि मेरी क्या ख्वाहिश है कि अगर मैं आर्टिस्ट नहीं हूं तो क्या हूं, तो अगर मैं आर्टिस्ट नहीं हूं वो तो बता। मैं आई वुड लाइक टू बी अ रैपर. A rapper? Okay, I did not see that coming. I thought you would have said actor. Rapper? No, no, no. Sir, I was going to ask you that you have to now rap for us to show us your talent. I wish मैं कर सकता, I wish मैं कर सकता. Okay, is that your answer or some other answer? और That's a अगर good अगर answer. मैं मिरपुर खास में, वैसे आई अप्लाइड इन फॉर आर्मी आल्सो, बट Seriously? हाँ, पर मेरी उस टाइम भी एक अजीब सी ख्वाहिश थी जो कि मैं अभी बड़े दिल से पूरी करता हूँ. व्हेन आई एम ड्राइविंग मिरपुर खास जब जा रहा होता हूँ, मुझे Yeah. कोच ड्राइवर बनने का बड़ा शौक था उस टाइम. Oh, एसी wow. कोच का ड्राइवर होता है ना, हाँ, लाइक आई डोंट नो. मजे की जिंदगी. चलो, that's interesting answer, sir. So rapper, and you could be both rapper and coach driver at the same time. नो नो नो, जो भी ऑन दैट आपकी, टाइम ओनली. अब जब जब से मैं अच्छा, वो थोड़ा सा, ऑफ कोर्स हाँ, ओवरलैपिंग. ठीक है, समझ आ गया. ओके, अब ये सवाल है जो कि ओके, सो बहुत सोशल मीडिया का आजकल जमाना है जहाँ पे हर चीज अब सोशल मीडिया पे है, एंड वी यूज सोशल मीडिया एज अ टूल फॉर सो मेनी थिंग्स. लॉट ऑफ अस, हमारे करियर्स में सोशल मीडिया हमें एड करता है इन मेनी डिफरेंट वेज, क्योंकि वो एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का. सो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हैज सोशल मीडिया, और मे बी स्पेसिफिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम, हैव दीज एप्स एडेड यू इन योर करियर इन एनी वे, या कुछ फायदा हुआ है इनकी, आप हैविंग योर प्रेजेंस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स इन योर लाइफ, इससे कोई फायदा हुआ है आपकी जिंदगी में या नुकसान? हाँ, पर चले एक फायदा देखता हूँ सबसे पहले कि भाई कहीं इधर उधर कहीं बैठे हो, कहीं बोर हो रहे हो तो बोर नहीं होते. ऐसे करके टिक 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 टिक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया. ये फायदा है. फायदा तो है वैसे. हाँ, बट आई गेस सोशल मीडिया में ये जो डिफरेंट डिफरेंट एप्स आ रही हैं और इतनी सारी चीजें एडिशन हो रही हैं, मैं भी शायद, मैं बहुत ओल्ड स्कूल थॉट हूँ या मेरे शायद इतना फास्ट नहीं हूँ, वो इतनी स्पीड में आ रही है कि अक्सर जो है वो जो ऐसा आपको फील होता है बार बार कि जनरेशन गैप है, कि हर ऐप के साथ 10 चीजें जुड़ी हुई होती हैं जो इस तरह से जी. नहीं, इस तरह से होती है, इस तरह से नहीं, इस तरह से होती है. एंड यू फील अच्छा यार, मैं कोई बहुत ही मतलब मैं तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि इंस्टा इतना इतना मतलब हर कोई यूज कर रहा है. सो व्हेन आई वाज क्यूरेटिंग बिनाले, तो मैं गया बर्लिन बिनाले, तो मैंने एक स्टोरी लगाई. अब मैं देखूं लोगों की इतनी स्टोरी, जब भी मैं अपनी स्टोरी खोलूं उसमें 22 घंटे बाकी हैं, फिर 21 घंटे बाकी हैं. मैं बोला यार लोग तो इतनी सारी लगा रहे, मेरी स्टोरी नहीं खत्म हो रही, या तो मैंने इसका टाइम फ्रेम बढ़ा दिया. सो ऑन द टाइम आई कॉल्ड राबिया अली. मैं शी वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर. तो फिर उसने मुझे समझाया कि सर ऐसे ऐसे जाओ और जाके लगा लें स्टोरी जितनी भी लगानी है. तो ना ये बहुत सी जगहों पे आपको फील होता है कि हाँ. बट यस, एडिशन अच्छा है इसका, टू बी ऑनेस्ट. और मुझे लगता है कि रसाई भी बहुत ज्यादा है लोगों तक. पर शायद इतना ज्यादा प्रैक्टिस हम लोगों ने फिजिकली आर्ट के साथ की है या उसकी अपीयरेंस को देखा है, उसको मैं टू बी ऑनेस्ट अभी तक नहीं एंजॉय कर. बिकॉज यू नो समटाइम्स यू कैन सी द मीडियम, यू कैन सी द ऑरा ऑफ दैट वर्क, वो बहुत जो है वो कम होता जा रहा है. हाँ, और वो थोड़ा सा कभी कभार एक बहुत ही गलत चीज कहूंगा मगर हो रही है कि समटाइम्स आप वो काम देख लेते हो तो वो एक खास जो आपकी चाह होती है ना, वो ऐसे लगता है इमेज खत्म कर देता है कि मतलब व्हेन आई गो एंड आई सी, अच्छा ये सारा कुछ देखा हुआ था मैंने ऑलरेडी, या मैंने उस पर देख लिया था, या नेक्स्ट टाइम ही 10 मिनट होते नहीं है शो के ओपन को, सब कुछ क्योंकि वो प्रेशर भी है ना कि फैला देना सोशल मीडिया पे, सबको हो जाना चाहिए, दुनिया भर के हैशटैग लगा देना चाहिए, ये भी हो जाए, उंगली उठाओ तो आपको वही नजर आए. सो समहाउ वो जो
थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी होती थी ना, जो लोग एक बात कहते थे मैं मोनालिसा देखने जाना चाहता हूँ पेरिस, हम्म। वो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री, क्योंकि ये है कि मतलब अब मुझे जो लगता है फॉर आर्टिस्ट स्पेशली काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट हो गया है टू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। वैसे तो काफी हैं जो नहीं रखते, लेकिन उस सोशल मीडिया प्रेजेंस को मेंटेन करने में भी काफी एनर्जी लगती है, एंड आई स्ट्रगल विद इट समटाइम्स, क्योंकि मुझे फील होता है कि आई नीड टू शेयर थिंग्स। अगर मैं नहीं शेयर करूंगी तो फिर रेलेवेंस रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन उसमें ही काफी एग्जॉशन हो जाती है। और मैं कभी कभी काम बनाने बैठती हूँ तो मुझे यही फील होता है व्हाई एम आई फीलिंग सो एग्जॉस्टेड, एंड देन आई रियलाइज बिकॉज आई वाज अपलोडिंग पिक्चर्स, आई वाज टैगिंग पीपल। अब आप अपलोड भी कोई स्टोरी कर रहे हो, यू कांट जस्ट अपलोड अ रैंडम थिंग, उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होना है, बहुत चीजें हम्म। सोचनी पड़ती है, तो द होल न्यू वर्ल्ड जो दैट यू नीड टू रियली बी गुड एट, तो ये एक प्रेशर भी फील होता तो है। ऑफ हम्म। कोर्स इसके फायदे भी बहुत हैं, जो हम बाद में करेंगे। आउटरीच जैसे आपने बोला वो काफी होती है लोगों तक पहुंचने की। अच्छा, अब रिसेंटली इन 2019 द entire world went through something very tough, which was COVID-19, and पूरी दुनिया ही अफेक्ट हुई है किसी ना किसी तरह से। Did COVID-19 play any role in your life in the sense that of either making things more difficult or even easier? कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा या आपकी जिंदगी वैसी ही काइंड ऑफ चलती रही, इतने चेंजेस नहीं आए? चेंजेस चेंजेस यार आए, यू नो, एक चेंज, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट चेंजेस मुझे फील हुए, बिकॉज मैं पढ़ाता भी हूँ, मतलब इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। हम्म। मुझे नहीं मजा आ रहा ऑनलाइन पढ़ाने में, हम्म। एंड इट्स लाइक आप आप जब सामने बैठे होते हैं और उसमें शायद 1 घंटे में, मुझे सा टीचर तो तुम्हें मैंने पढ़ाया है, 40 मिनट फजूल बात करेगा, पर आई फील दैट वो फजूल जो कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या इट इज। पर प्रैक्टिकली भी आप कभी कभार कोई चीज कर रहे होते हैं, करते करते कोई चीज को जरा सा आप कैजुअली उसको बता देते हैं ना, उसका इफेक्ट फर्क होता है। वो इफेक्ट बिल्कुल। जैसे ही निकला है ना हाथ से, तो वो अब क्या होता है कि एक स्टूडेंट भी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट दिखाएगा आपको, और मुझे हम्म। लगता है प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस हमेशा गायब है, और वो जी। फाइनल प्रोडक्ट में आप, अब उसके पास उसने फोटोग्राफी सही की है नहीं की है, तस्वीर आ गई है नहीं आ गई है, और वो ना हम्म। एक अजीब सा डिसजॉइंटेड सी एक सिचुएशन रहती है। तो बिल्कुल। that situation I'm not enjoying at all. I can understand that there is a problem because of COVID. You can't, but हम्म। वो अभी तक मुझे नहीं इतना 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 सा सही। मजा आ रहा। बाकी इनकंसिस्टेंसी और भी तो होती है बिटवीन मतलब क्योंकि चेंज भी तो हो रहा है, इट्स नॉट इवन जस्ट ऑनलाइन, कभी खुल रही हैं चीजें फिर वापस बंद हो रही हैं, वो भी इतना मेंटल टोल भी ले लेता है हाँ, लोगों पे। वो आपको पता नहीं होता कि सुबह जा रहे हैं और आज बंद हो गया कॉलेज, कल बंद हो जी। गया, कल खुलना है, परसों बंद हो गया, एग्जैक्टली। हाउ मेनी डेज इट विल। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ही अजीब रहता है। फिर स्टूडेंट के पास भी एक अजीब सा, मैं ये कहूंगा कि यू नो, अब मैं उसका फर्क बताऊं, इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि मैंने एक क्लास ली। अब बहुत सारे बच्चे थे जो कि, क्योंकि बिकॉज इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, तो वो वीडियो आप बोलते हैं बंद कर दो और सिर्फ इमेज दिखाओ, ये दिखाओ। अब इतने सारे स्टूडेंट्स आके मुझसे मिले और हम्म। मैं उनको नहीं पहचानता था। ओह। और अभी लास्ट क्लास जो कि मैंने जाके फिजिकली वहां पे क्लास में ली, हम्म। इंटरेस्टिंगली लास्ट डे में उनको बता रहा था कि ज्यूरी होनी है, और ज्यूरी इस तरह से ब्ला 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 होगा। तो एक स्टूडेंट ने आके, मेरे ख्याल में थोड़ी सी लेट आई वो, मैं कैंटीन में खड़ा होता रहा था, और उसने आके पता नहीं पूछा कि सर क्या बात है। तो मैंने कहा बेटा आप कौन, क्योंकि मैंने पूरी क्लास में उसको मास्क में देखा। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं रिकग्नाइज, एक तो क्लासेस लगाती थी तो मास्क भी होता था ना, क्लासेस में मास्क थे, मुझे या बिल्कुल ही नहीं पहचाना कि कौन है ये। अंडरस्टैंड। तो ये अंडरस्टैंडेबल। एज एन टीचर मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो अलग गया। सा मतलब मुझे, एक्सपीरियंस है मैं इतना बहुत। मजा एंजॉय नहीं कर, डिफिकल्ट था, इतना एंजॉय नहीं कर रहा। सही सम बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। हम्म। ओके, सो नाउ आप जो है you are not just a visual artist, you have many things under your wing that you have done or you keep doing, तो इनमें से कौन सा रोल आपको सबसे नेचुरली आता है या आप उसके बारे में बात करना चाहें
visual art, performance art, acting, teaching, curating, and I know there are other things also जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही, but ये तो आप बहुत prominently करते हैं. So, यार द ओनली can you थिंग इज say? दैट मैं आवारगी करता हूँ, एंजॉय करता हूँ. नो नो Okay. सीरियसली देखो, मेरा मेरा काम का स्टाइल भी ऐसा है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी ऐसा है. माइट भी जो तुम इस बात पे हामी भी शायद भर सकती हो, क्योंकि तुम देखा कि मैं उतना ही अपने ही दिल में रहता हूँ. मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ. एंड आई फील बिल्कुल. कि मैं उन लकी इंसानों में से हूँ कि मुझे अपना रोल प्ले करते हुए एज ए टीचर, क्यूरेटर, एज ए विजुअल आर्टिस्ट अपने अपने आप को नहीं चेंज करना पड़ता. और Great. ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए. जिस तरह से आप कहो ना कि कोई ब्लेसिंग है कि आप सक्सेसफुल आर्टिस्ट, मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है कि मुझे वो चेंज नहीं करना पड़ता अपना. Okay. क्योंकि जब Amazing. आप अपने आप को पूरा चेंज करते हैं और स्पेशली एज एन आर्टिस्ट चेंज करते हैं, तो देर इज अ काइंड ऑफ ऐसा कवर आ जाता है और ऐसा मास्क एक आ जाता है कि जो कि बहुत अच्छी चीज बाहर नहीं निकाल सकता. तो मैं शायद उन लकी इंसानों में से हूँ जो पढ़ाते हुए भी उसी उसी लैंग्वेज को रखूंगा, उसी हुलिया में आऊंगा, क्यूरेट करते हुए भी Yeah. उसी में आऊंगा, अपना काम करते हुए उसमें आऊंगा. तो आई थिंक ये चीज है, तभी मैं कहता हूँ कि आवारगी कर रहा हूँ और उस आवारगी में खुश हूँ. Amazing. And that shows that authenticity is so important कि आप जो हैं वही रहें फिर. That's a tip we can take from you कि we don't need to become someone else. हम जो हैं वो हम्म. हैं. And it works so well with you. माशाल्लाह. मैं That's किसी great. चीज की क्रिटिक नहीं करना चाह रहा, पर मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ. मैं शायद इस जगह बहुत गलत हो सकता हूँ, पर ये मेरी सोच है कि जिस तरह से आजकल मुझे थोड़ा सा फील होने लग थोड़ा सा ज्यादा फील होने लग गया है कि आजकल हमारे स्टूडियो से आर्ट की स्मेल नहीं आ रही. आर्ट से मेरा मतलब पेंट की नहीं है. मैं आई एम जस्ट जनरली, मैं सिंबॉलिकली कह रहा हूँ, ब्रांड्स की स्मेल आ रही है. आर्टिस्ट से Okay. लेके उसका स्टूडियो तक जो है ना, वो एक ब्रांडेड कोई चीज हो गई है कि Right, अनटचेबल कोई right, सिचुएशन हो गया है. आप बहुत ही right. कोई यू नो लाइक किसी शोरूम में एंटर हो गए, विच विच आई फील कि मुझे थोड़ा सा जो है ना, बिकॉज वो जो एक फील है ना कि आप आर्टिस्ट के स्टूडियो में जब जा रहे होते हो तो आप उसके साथ कैजुअली मिलने जा रहे हो. तो मुझे पुरानी तस्वीर, मुझे टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए शायद मैं वो एक आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कुछ वो पिक्चर आजकल अक्सर लोग लगा रहे होते हैं कि मोइन अख्तर बैठा हुआ है, उनके साथ 4 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, वो कोई कार्ड्स खेल रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है, और पुराने फराज बैठा हुआ राइटर, तो उनके साथ इकबाल जी. मेहदी है नहीं, ऐसे. वो इतनी खत्म हो गई है और हर जो स्टूडियो है अच्छा. वो इतना इतना ज्यादा एक ब्रांडेड शॉप बन गया है कि Sir, आई I डोंट नो. sorry. आप complete करें फिर मैं बोलती नहीं हूँ. नहीं नहीं, मैं यही कह रहा था कि मुझे मुझे मैं इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा उस बात को. बिल्कुल सर. आई अंडरस्टैंड एंड मैं सिर्फ ये इस लिहाज से ऐड करूंगी कि अगेन मैं सोशल मीडिया के लिहाज से देखती हूँ दैट आई सी दैट सोशल मीडिया पे एवरी एंड मैं इसको ये नहीं कह रही सही है गलत है बट आई रियली थिंक फॉर एग्जाम्पल ऑन इंस्टाग्राम अब एक प्रेशर हो गया आर्टिस्ट पे भी काइंड ऑफ कि आप अपना एक ब्रांड क्रिएट करें. मतलब एक शायद ये मैं बहुत लिटरली चीज बोल रही हूँ, लोग कहेंगे नो दैट्स नॉट व्हाट इट इज, लेकिन वो एक चीज है भी एंड आई नो एंड वी ऑल हैव सीन द नंबर ऑफ आर्टिस्ट जो कि अब मैं सोशल मीडिया के हिसाब से कह रही हूँ वो इंस्टाग्राम आर्टिस्ट हैं इन द सेंस के दे बिकेम सक्सेसफुल ऑन इंस्टाग्राम एंड दिस कैन बी अ गुड थिंग ऑल्सो. लेकिन फिर उस वो जो आप बोल रहे हैं ना एक ब्रांड क्रिएशन है वो शायद फिर अदर एस्पेक्ट्स में भी आती है कि हमारा एक नाम है and this name needs to be out there. People need to recognize me according to my name और एक persona create होता है around that. तो ये मैं एक उसकी नहीं बात कर personal रहा जी शादी. I know आप मैं स्टूडियो की ओवरऑल बात करने सेटिंग की में हाँ, ओवरऑल जी स्टूडियो से लेके आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ. वो ब्रांडेड शॉप artists बन गए. themselves की इट्स branded जस्ट लाइक but do you think मेरे that so मेरे पास अगर इसकी टेबल नहीं होगी इस ब्रांड की, सो यू नो दैट्स द थिंग. मैं इससे कम हाथ नहीं लगाता, मैं उससे कम आंख नहीं उठाता, मैं इससे कम अच्छा शॉप्स you're नहीं talking about करता. like यू नो दैट्स लाइक expensive अच्छा दैट इज आई एम okay सेइंग. वो ब्रांडेड शॉप लगती है. इट्स नॉट आर्ट की oh स्मेल का okay मतलब आपका आर्ट भी जो है वो अनटचेबल है, दुनिया से अलग है. हाँ यू नो यू हैव टू बी, आपको समंदर हाँ में 10 दफा स्नान करके आके
मेरे कान से 20 फीट पीछे उंगली तक, मतलब इट्स जस्ट लाइक सो मेनी थिंग्स कि यार Yeah, फॉर गॉड सेक yeah, यार, आर्ट yeah, है, yeah. तुमने उसको क्या क्या कर दिया। तो बिल्कुल, वो okay. मैं उसकी Understand. बात कर रहा था वो। ठीक है, सही है. That is also very much prevalent. So, Ashra sir, now this is another question, which is that you're a mentor for many, and you do this with a very open heart for younger artists. And ये हमने भी देखा है because when we graduated, we had no direction, and you were one of the people who really helped us out and gave us direction. You took out time for us, and we are very grateful to you for that. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या एक चीज आपने does it come naturally to you या ये आपने consciously decide किया कि नहीं ये नए students हैं they need direction जिस तरीके के आपके mentors थे you want to give back that way या इस वजह से था या कोई और वजह थी what will you say about the idea of having a mentor in the art world? यार मैं तुम्हें बताऊं, मेरा बड़ा बड़ा ही अगेन कहूंगा दकियानूसी बिलीव है इस बात पे। मैं देखो, एक बात तो रियलिटी है कि मुझसे बेइंतहा आर्ट अच्छा करने वाला आर्टिस्ट मौजूद है, और अच्छा आर्टिस्ट आर्ट बन भी रहा है। आई थिंक ये कोई और खुदा की कोई मर्जी है खास कि मुझे उसने इतनी इज्जत दी है। और मुझे लगता है कि दिस इज द वे कि मैं आर्ट वर्ल्ड को रिटर्न कर सकता हूँ। और यू नो व्हाई आई डू, मैं इसको एज एन इंश्योरेंस प्लान लेता हूँ। बिलीव मी शान से, अगर किसी आर्टिस्ट के साथ काम करो या उनका कुछ शो हो या उनका कोई अच्छा रिजल्ट आए, उनके माँ बाप इतनी दुआएं देते हैं। एंड कैन यू इमेजिन, हम अपनी माँ की दुआ पे, हर इंसान दुनिया में कहीं भी है, इतना चौड़ा होके बड़े से बड़ा पहाड़ सर करने चले जाता है। कैन यू इमेजिन, आपको जब इतनी सारी माएं दुआ दे रही हो, तो फिर तो आप बोलते हो कि यार Yeah. अब जो कर, मतलब मेरा कुछ कौन क्या खा लेगा। तो मुझे लगता है कि Amazing. वो बहुत Yeah. ब्लेसिंग्स हैं जो जिनके बिना पे जो भी हूँ वो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो मैं कभी Amazing. सोचूं भी तो ये चीज नहीं सोच सकता कि मैं क्यों ना करूं, करता हूँ क्योंकि फिर आएगा रिटर्न। बिल्कुल. और वो कहते That's हैं ना, 10 amazing. दुनिया 70 आखिरत, तो 10 दुनिया तो मिल ही रहा है ना। That's amazing. And that's what artists need. Because again, ये critique है कि art school पे आप ये चीजें नहीं सीखते, and ये बहुत life आपको कोई तो हो कि आपको life skills सिखाए कि as an artist आप कैसे successful हो, you don't necessarily learn that in art school. So to have mentors like this is very very important. Okay, now when it comes to fine art itself, uh, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो फाइन आर्ट की दुनिया से स्पेशली नहीं होते, उनको ये लगता है कि फाइन आर्ट इज वेरी एक्सक्लूसिव थिंग in its creation, in its understanding, in exposure to it, promotion and collection. ये सारी चीजें सिर्फ एक exclusive number of लोग कर सकते हैं। ये सब, एक तो ये है कि सबको समझ नहीं आएगा, एक तो सबको access नहीं है, और एक तो ये कि deliberately भी कहा जाता है कि the art world is like this because it's a game of limitation के कम artists हैं, उनकी value ज्यादा है। Are any of these things making sense? Do you agree with any? Do you think fine art is accessible for all, or is it an exclusive thing? And do you have anything to देखो, say about that? एक्सेसिबल तो है। मुझे लगता है कि हर इंसान जो आप कभी किसी के भी घर चले जाएं, वो फाइनेंशियली किसी भी स्टेज पे हो, वो अपने घर को एक एस्थेटिकली डिजाइन करता है, एक एस्थेटिकली अपनी चीजों को रखता है। यस, ये एक अलग बात है कि उसके पास सबसे महंगा आर्ट है कि नहीं है, पर अगर आप यकीन मानो गांव गोठों में चले जाओ, तो वो भी एक शेल्फ लगा के उसको रंग बिरंगा करके और उसके ऊपर ग्लास उन्होंने एक खूबसूरती से रखे होते हैं। तो ये एक अलग बात है कि किसकी कहाँ तक रसाई है और किसकी कहाँ तक वो पहुंच के लिमिट है जो ले सकता है। पर मुझे ये लगता है कि हर किसी के पास है। ये हमारी तरफ है कि हम कितना ओपन करने को तैयार हैं। अगर वी आर रेडी टू ओपन, आई गेस ये बहुत बड़ी वजह थी कि जो मैं मेरी एक कोशिश थी कि मैं KB19 को ऐसे पब्लिक स्पेसेस पे ले जाऊं जहां पे लोग आर्ट देखने नहीं आ रहे, जहां पे हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि हम लोगों को बुला रहे हैं, जहां लोग जा रहे हैं हम वहां हम आर्ट ले जाएं। सो मुझे लगता है कि एस्थेटिक हर जगह, हर कोई कर रहा है। मतलब जो घर में अपने यार एक तस्वीर भी लगाता है वो भी
सिर्फ हम सिर्फ अगर जब तक ये रखते रहेंगे ना कि अच्छा इस लेवल का आर्ट होगा या ये काम होगा तो काम लगेगा हाँ। वरना नहीं है, तो वो हम खुद अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं, अदरवाइज तो ठीक है। एवरीवन हैज दिस अदरवाइज थिंग। ओके एवरीवन ठीक है। और अच्छा हमारे जैसे अब मुल्क में, सॉरी बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे मुल्क में जिसमें बस चलती हुई जा रही होती है तो मेरे ख्याल में वो किसी एग्जीबिशन से कम नहीं होती है, ट्रक वो को देखो तो किसी बिल्कुल सही एग्जीबिशन बात से कम नहीं होता, रक्शे को देखो तो किसी एग्जीबिशन से कम है नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर तो यू नो फिर तो ये आई डोंट नो ये कितना एक्यूरेट है या नहीं, बट आई थिंक आई रेड इट इन सम आर्टिकल कि वो एक बस के ऊपर शायद 30 लाख रुपए खर्च होते हैं ओवर द इयर्स। मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई थी उस नंबर से, बट आई थिंक वो ओवर द इयर्स उसके ऊपर मतलब काम करते रहते हैं एंड इट्स मतलब इट्स अ प्रॉपर आर्ट फॉर्म। सो सो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा अब आपको क्या लगता है, काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है लेकिन नहीं भी है, कि to be a successful artist or to be an artist, do you think art education is important या ये चीज जरूरी नहीं है? जिस तरीके से दूसरी फील्ड्स में डिग्रीज की जरूरत होती है, क्या आर्ट में इज दिस इम्पोर्टेंट और नॉट? देखो, आर्ट डिग्री ना हो मगर आर्ट एजुकेशन इम्पोर्टेंट, दिस इज टू व्हाट इज द डिफरेंट थिंग। डिफरेंस? देखो, डिग्री में हम बात करते हैं, ये सबसे बड़ा शानजे बड़ा इंटरेस्टिंग है चीज, बड़ा मसला हो रहा है कि हम लोग डिग्री ले रहे हैं, या बहुत सारे यंग आर्टिस्ट हैं उनको लग रहा है कि शायद कॉन्वोकेशन वाले दिन या ग्रेजुएशन वाले दिन कोई ऐसी एक चिप लगा दी जाएगी कि आप आर्टिस्ट बन जाओगे, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एंड आई फील के पूरी उम्र भी आप करते रहो तो वो खत्म नहीं हो सकता। सो ठीक है। उस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि आर्ट की एजुकेशन बहुत जरूरी है। फिर वो एजुकेशन कहाँ कहाँ से मिल सकती है, किस किस तरह से मिल सकती है, कैसे कैसे मिल सकती है, वो एक अलग सिनेरियो है, पर वो सिर्फ डिग्री पे बाउंड नहीं है। ठीक है। ओके ओके। पर अगर ऑब्वियसली अगर आप डिग्री ले ही रहे हैं, अगर आर्ट में ले लें तो जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, फिर एक और वो हाँ एडिट चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड उससे एक आपको एक जैसे थोड़ा सा विंडो भी मिल जाता है कि अगर आपने एक डिग्री ले ली है तो फिर बिकॉज यूर इंट्रोड्यूस टू आर्टिस्ट, यू इंट्रोड्यूस टू एक तो नॉलेज अबाउट आर्टिस्ट, बट देन ऑल्सो आपकी डिग्री शो पे अगर हम्म आपको जैसे आर्टिस्ट बनना है तो एक विंडो, एक एक वो स्टेप इनटू द आर्ट वर्ल्ड मिल जाता है कि गैलरिस्ट, अदर आर्टिस्ट दे कमिंग हम्म लुकिंग एट योर वर्क, कलेक्टर्स आर कमिंग, तो वो लोग आपको पहचान भी लेते हैं उस तरीके से। प्लस आपकी एजुकेशन थोड़ी होलसम भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस तरीके से आपकी एजुकेशन होगी, यू कैन डू इट इन अदर वेज ऑल्सो। अच्छा अब ये चीज फॉर एग्जाम्पल काफी लोग फेस करते हैं अभी भी कि दे डोंट टेक आर्ट टू बी अ वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट करियर, एंड ये तो ऑफन पेरेंट्स अपने बच्चों से भी कहते हैं। एंड ऑफन आप आर्टिस्ट हो भी जाए एंड आपके अगर आपके बैंकर फ्रेंड्स हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या किसी और वर्ल्ड में, वो इस चीज को शायद इतना सीरियसली नहीं लेते, बेशक वो बोले भी ना इस बात को। लेकिन एक एक मेरी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक मेरी जानने वाली हैं, शी इज अ वेरी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट पर्सन, एंड उनका तो फिर प्रॉपर ऐसा करियर है कि शी इज ऑलवेज बिजी वर्किंग रियली हार्ड, ट्रैवलिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट मैंने उनको कहा कि या इन माई आर्टिस्ट करियर ये वो, she's like, yours is not a career, you don't call that a career, you call that like a, I can't remember what term she said, but उन्होंने मुझे बोला कि वो करियर थोड़ी है कि आप फिर आपको हर रोज कहीं 9 to 5 पहुंचना नहीं है, आपकी एग्जीबिशंस साल में 3-4 दफा या जब भी होती हैं। तो उन्होंने ये बात मुझे बोली एंड आई फेल्ट बिट ऑफेंडेड टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपका इस बात में आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में? अच्छा, मुझे एक चीज, सबसे पहले तो एक चीज याद आई, मैं उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा। दो आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं इस किस्से में। आज से काफी अरसे पहले, कुछ 15-16 साल पहले, जिस आर्टिस्ट का जिक्र कर रहा हूँ वो आर्ट में आना चाहता था। तो उसने जब अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे आर्ट में जाना है, तो उन्होंने कहा कि इनके ये तो कोई वो नहीं है, इससे क्या कमाओगे, क्या खाओगे। तो उसने एग्जाम्पल दी थी कि एक और आर्टिस्ट है, वो अपना घर बना रहा है और उसके घर में जो एक कमोड है उसकी प्राइस जो है वो 40,000 है। ओके। तो आई नो इट्स ऑड वे, बट ही कन्विंस कि देखो आर्टिस्ट जो है इतना कमा लेता है। Yeah, yeah, that's नहीं, या ये
जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड का या किसी भी, जिस तरह से आपने कहा कि वो कह रहे, ये बड़ी बड़ी ही बहुत दुख की बात है, क्योंकि यार अगर ये बिल्कुल। चीज कोई कोई गांव में बैठा हुआ, मिट्टी में बैठा हुआ कोई बंदा, मतलब मिट्टी से मेरा मुराद, सॉरी मुझे मिट्टी में तो किसी गांव में बैठ के कोई बंदा कहे ये बात तो समझ में आती है, बट हम्म। समवन who is supposedly educated and especially belongs to the corporate sector, जो कि पैसे में खेलते हैं हर वक्त, हम्म। ऊपर नीचे करते हम्म। हैं, जब वो ऐसे बात हम्म। करते हैं ना, तो आपको ये जरूर मतलब ये एहसास हो ना हो कि ये एक प्रोफेशन है कि नहीं है, आपको ये एहसास हम्म। जरूर होता है कि आप कमा जरूर है, मगर आप भी किसी प्रोफेशन में नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं है प्रोफेशन में, बिकॉज यू नो समवन लाइक हु इज एजुकेटेड और वो ये बात कह रहा है, तो उसको अगर मैं सिर्फ यही कहूँ, जो अभी रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन दैट डेमिन हर्स्ट डिड दिस एनएफटी, हम्म। आपने शायद देखा था, या बहुत सारे जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने मतलब उसने देखा हो। NFTs तो अब बहुत आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो मैंने उनका हाँ, मगर स्पेसिफिकली नहीं देखा। I'm just giving one example कि like जी he जी। sold 10,000 NFTs, मतलब 10,000 वर्क थे जो पर एनएफटी जो था या आर्ट वर्क जो था, वो $2,000 का था, हम्म। एंड विद इन मंथ दैट एनएफटी रीच 40,000 और $60,000। वाओ। तो वाओ। जिन्होंने भी आपसे बोला था, उनसे बोलिए कि जितने ये 10,000 इन्होंने जो काम बेचा और उसकी जो वैल्यू है ना, आई थिंक आपने एग्जैक्टली। जितनी जिंदगी गुजारी है उसकी जितनी आपने तनख्वाह ले ली होगी या इंसेंटिव ले ली होगी, उससे 10 गुना ज्यादा होगा। तो प्लीज गुड पॉइंट। बोलने से पहले गुड पॉइंट। थोड़ा सा आई एम आंखें गोइंग खोल लें। टू आई एम गोइंग टू रिमेम्बर दिस। कोई भी ऐसा बोले डेमियन हर्स्ट ने तो ये किया, नो बट आई एग्री विद यू। एंड द थिंग यार इज मैं मुझे देखिए तुम्हें एक मेरा एक पूरा एक एक्सपीरियंस रहा, और इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे जो अर्बन सिटीज हैं जहाँ पे लोग ज्यादा एजुकेशन रखते हैं, उनके कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं इंटीरियर में, वहां पे लोगों को ज्यादा एहसास हो गया है कि आर्ट एक अच्छी फील्ड है, आर्ट में जाके आप कुछ कर सकते हैं, एक अपनी अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। ओके। इंटरेस्टिंगली इतने सारे, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी कि आर्यन नहीं गया है और हमने देखा कि इज लिविंग अ गुड लाइफ, सो और एक और आर्टिस्ट फिर वहां से गया, और वो एक लाइन है जो चलती आ रही। तो आपको इन छोटे इलाकों में लोग ज्यादा समझ रखते हैं कि अच्छा ये था, कल तक पेंटर था, साइकिल पे नहीं घूमता था, आज अपने घर आते तो गाड़ी पे आता है, इसका मतलब आर्ट कोई फील्ड है। अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली। हमारे पढ़े लिखे लोग जिनके पास एक्सपोजर है, आई डोंट नो व्हाई, क्या उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। आई और डोंट नो। कहाँ आई कहाँ पे डोंट नो। मसला आ रहा। या बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक उनको खुद को एक्सपोजर नहीं है। मुझे लगता है वो अभी भी उनको दे डोंट नो कि आर्ट वर्ल्ड में है क्या, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से। तो शायद उनको फ्रॉम द आउटसाइड तो यही लगता है ना कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, तो आई होप ये लोग एजुकेट हो जाएं, बट आई एम सेइंग आई थिंक उनको ये लगता है कि वो तो अपॉन देयर विम, उनकी मर्जी, जब स्टूडियो में जाएं कोई आर्ट बनाएं, जब दिल चाहा बेच दिया। तो आई थिंक वो स्टीरियोटाइप बहुत गलत है, बिकॉज आर्टिस्ट हैव टू हैव देयर ओन डिसिप्लिन। ये इसका मतलब नहीं कि आप जब भी दिल चाहते सोते करते हैं। एक एक पूरा ट्रेजेक्ट्री होती है टू बी अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू बिल्ड कनेक्शंस, यू हैव टू हैव योर नेम आउट देयर। पूरा एक एक अलग किस्म का करियर। ये है कि हमें ऑफिस नहीं जाना होता थैंकफुली, लेकिन नहीं, पर मैं तो बताऊं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर जब भी क्वेश्चन करता है, ये एक और बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सैड पार्ट दिखाता है, स्पेशली हमारे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। कि इज दैट शोज कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है ना आर्ट, वो जीरो विजिबिलिटी पे चल रहा है। हम्म। एंड आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं जहां बहुत आर्ट फ्लरिश करे, वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मैं एक एक कंट्रीज का ठीक है। नाम नहीं ले रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना, वो दूर दूर तक नहीं है। हम्म। तो जब वो बिल्कुल उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उनको समझ में भी आएगा, तो आई थिंक दैट शोज कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। बिल्कुल। ठीक है, सो डू यू थिंक देयर इज एनीथिंग, दिस इज अ वेग क्वेश्चन, तो आपकी मर्जी आप कैसे इसको जवाब दें।
Do you think there's anything as a failed artist कोई चीज है या not really? यार ये बड़ा बड़ा यार मेरी नजर में आर्टिस्ट का एक ही फेलियर होता है, जब वो काम छोड़ता है, Hmm. वो काम Good ना answer. करे। True, true. Because as we've discussed, resilience is a very important quality, and though I mean, लोगों को देखा भी है जो कि शायद काफी टाइम तक आर्ट में नहीं थे, फिर आर्ट में आ गए। मेरे अपने फादर जो हैं, उनका एक और करियर था, फिर उन्होंने 10-12 साल बाद ही स्विच टू फाइन आर्ट। तो मैं आई थिंक ये कहना है कि रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और शायद शुरू में even if I think आपको नहीं चांस मिल रहा हो the kind of chances you require, I think फिर भी आपका much higher chances है if you keep going rather than if you are really talented and if you just stop, you know? तो अगर आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो ना काम करे तो फिर that's when you really fail. अच्छा, अब ये है कि अभी आपके बारे में सवाल है, your personality, okay? So you come across as quietly rebellious in your imagery जो आप बनाते हैं, in your performances जो कि आपने हमें बताई भी हैं या हमने देखी भी हैं, in your appearance, your dressing style, in your thoughts. So how come? What makes you this person? यार मैं तो बिल्कुल भी रिबेलियस नहीं। मैंने शुरू से ही कहा ना, मैं एक शरीफ इंसान, सुबह उठता था, वर्जिश करता था, स्कूल जाता था। Totally. नहीं यार इसलिए मैंने ऐड किया अच्छा quietly because आप loudly rebellious नहीं हैं, आप में अच्छा एक फिर quiet, yeah. अच्छा मैं बस So you वो बच्चे तो एक पर्दा है कि मैं निकल जाऊंगा आराम से फिर। नहीं यार आप निकल भी जाते हैं लेकिन rebellious भी हैं आप, हाँ। यार अपने दिल की करता हूँ। और शायद मैं अगेन जो मैं पहले भी बात कर रहा था, मैं उन लकी लोगों में से हूँ जो अपने दिल की करता हूँ। फिर मुझे इन्वायरमेंट भी मिली, मतलब मुझे फैमिली साइड पे भी सपोर्ट रहा। फिर लकीली मेरी बीवी ऐसी मिली जिसने माता पिता आजाद छोड़ रखा है मुझे। तो आई गेस ये बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। तो मेरे लिए भी आसान। फिर मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ ना, मतलब ऐसे ही कुछ कर लिया मजा नहीं आता। अगर कुछ आपने करते करते कुछ मतलब इवन दो टू बी ऑनेस्ट, अगर ड्रेसिंग में भी है ना कि समटाइम्स आई नो कि इफ आई एम वेयरिंग इतना आंखों को चुभने वाला कलर, तो आई नो कि मुझे भी दिख रहा है कि आंखों को चुभ रहा है। अब यू नो व्हेन यू गो से क्या अच्छा यार ये क्या कर रखा है यार, मैंने किया हुआ खुद से। यू नो ये कैसे मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरा अगर एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इरफान गुलडारी, वेरी गुड आर्टिस्ट। ही इज अ वेरी गुड क्यूरेटर आल्सो। सो हम अक्सर कभी बात कर रहे थे, अपना पुराने टाइम याद कर रहे थे। एक दफा मेरे वो जो उसको क्या कहते हैं जो शर्ट के ऊपर एक वो लगा होता है I यहाँ know पे what नहीं you're तो, talking about. हाँ बटन आई के डोंट नो साथ जो हाँ हाँ मुझे भी नहीं उसका पता। बटन उसका बटन टूट गया था, तो वो Okay, यूं हो गया। अब मैं चलता हुआ okay. जा रहा था, वो यूं 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 था। अच्छा मैंने बटन तो लगा लिया, उसके बाद मैंने देखा जो भी आ रहा था वही कहता था यार ये खुला हुआ है। आप बोलते अच्छा हाँ ठीक है, मैं यूं रखता था, वापस छोड़ देता उसको, बिकॉज आई वाज Okay. एंजॉयिंग। अच्छा यार ये मैं ऐसे निकल जाता, ये नोटिस ही नहीं करता, उसने नोटिस किया। सो आई नो इट्स अजीब सी बात है। सो Interesting. Yeah. तो आई डू कि ठीक है, मुझे जो दिल में आता है वो करता हूँ। And आपकी जो shirts हैं, do you design them yourself? डिजाइन मैं सेलेक्ट करता हूँ कपड़ा। Select कपड़े और कर कपड़े। हाँ, और मेरे पास 3 डिफरेंट शर्ट्स ऐसी हैं जो कि मेरे दर्जी को भी पता है कि अगर मतलब पैटर्न बड़ा होगा तो कौन सी शर्ट का कॉपी करना है, प्लेन होगा तो कौन सी को कॉपी करना है, अगर मोटिव छोटा होगा तो कौन सी को कॉपी करना है। Amazing. नहीं, I think it's something that people look forward to as well. That what will Mohammad Dishan be wearing today? I think it's become a part of your persona as well, and what अच्छा people expect आ, from you. आजकल तो बड़ा बड़ा फर्क हो गया है, क्योंकि आजकल मेरी बेटी डिसाइड करती है सुबह उठ के क्या पहनना Oh है। wow, oh wow. तो फिर ज्यादातर पिंक्स होते हैं, और does she like any color? वो शुरू अब तो सही हो गई। शुरू में तो वो नाराज हो गई थी कि पिंक आप क्यों पहनते हैं, पिंक तो मेरा फेवरेट कलर है। Oh. उसको समझाना पड़ा कि बेटा पिंक मैं भी पहन नहीं, पिंक तो मेरा फेवरेट कलर है। So isn't there any interest in some cartoons or Disney या कोई ऐसी चीज कि आप उस तरीके की ड्रेसिंग करें? वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको कैसा प्रिंट मिले ना।
some very हाँ fun ये भी one. उसको वो खुद ही एल्सा बनने के चक्कर में रहती है हमेशा। वो अच्छा, उसने मुझे अभी amazing. बल्कि थोड़ी देर पहले तो अभी जब मैं सेट कर रहा था तो मुझसे वो कह रही थी वो एल्सा में एक कैरेक्टर ना ओला, आ, वो जो आना बर्फ और का वो एल्सा ही पता छोटा है और सा नहीं पता. वो छोटा सा वो है आइस का वो जो है मैं उसको ओला कहते क्या कहते हैं वो जो ओके ओके, मैंने देखा नहीं है, सॉरी, मुझे पता हाँ नहीं. तो तो फिर मुझे शी वाज आस्किंग कि आप वो बन जाइएगा, तो सबसे और कैरेक्टर मुझे दे रही थी कि आप वो बन जाए। ओला, ओके, या ये अलग से आर्ट ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, अब समझ आ गया. तो ओलफ हाँ सही सच्ची। yeah. Is she interested in art? Does she see you work? And I mean, Kaif is also, I mean, an artist in a way. She's an actress, a very successful one. तो आप दोनों इतनी artistic fields में, do you see that rubbing off on her? कि हाँ हाँ मतलब वो भी मतलब वो inspiration लेगी. आर्ट भी कर रही है आजकल। कैफ एक एक कोरियोग्राफ कर रही है अपने Amazing. दो फेलो डांसर्स के साथ, तो वो डेली उनके साथ Okay. प्रैक्टिस कर रही होती है, Wow. डांस कर रही होती है। एंड कैफ डज दिस ऑब्वियसली क्लासिकल डांसिंग, तो उसमें आंखों की मूवमेंट होती है, तो वो 2 दिन से उसने उनको करते हुए देखा, तो वो बोलती है मुझे भी Amazing. आता आंखों का डांस आता है, और वो यूं करके दिखा रही होती है, बस आंखें यूं कर रही होती It's तो। amazing. I've seen Kaif dance. She dances beautifully. और Amazing. उसने तो पर मुझे तो आर्ट में उसने बड़ा अच्छा तरीके से अ, 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 बेइज्जत किया। मैं पेंट कर रहा था, आजकल मैं कुछ क्रिएटिव काम कर रहा हूँ तो मैं बना रहा था, तो आके बोलेंगे पापा क्या बना रहे हैं, ये आंटी को बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो किसको? नेक्स्ट डे फिर आई किसको ये बनाया? आंटी आंटी को? ये आंटी आंटी. को ओके ओके ओके. नेक्स्ट डे फिर आई, फिर देखा तो कहने लगी पापा अभी तक वही आंटी बना रहे हैं। मैंने कहा कह रही मैं तो इतनी देर में 5 पेंटिंग बना लेती हूँ, आई कैन मेक 5 पेंटिंग्स। मैंने कहा That's amazing. तो That's amazing. ये मेरी अम्मी ने मुझे कहा था एक दफा, मैं बहुत बड़ी पेंटिंग बना रही थी सर, इतनी डिटेल्स थी उसमें, और अगले दिन मैंने काम किया एंड वो अगले दिन आई, बेटा इतना ही काम किया, I'm like मामा टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है. But that's adorable that she's and of course and I this is a separate point, but Kaif's recent drama has taken Pakistan by storm. उनका जो कैरेक्टर है हम्म is just amazing. I think I would love to speak to her हम्म as well about her field soon. हाँ उसका बड़ा But अच्छा रहा ये कैरेक्टर, मतलब इस दफा मुझे लगता है उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी ना, एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, वो वही रहेगी जो। बहुत जबरदस्त है. Everybody's talking about it. So I think now we can get back to that question that we missed. हम्म और वो ये था कि आपके कोई वैसे तो बेनतहा अचीवमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग KB17, you've been mentor generally, आपके इतने इतने बड़े म्यूजियम्स, परमानेंट कलेक्शंस में आपका काम है, एंड आपने रेजिडेंसीज को भी क्यूरेट किया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग. आई एम प्रॉब्ली मिसिंग आउट. देन योर एक्टिंग एज लेनी, यू नो दैट वाज सो फैंटास्टिक. तो इनमें से वैसे तो मेरा सवाल ये था कि सम सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट यू आर प्राउड ऑफ, तो इसी में से इफ यू वांट टू टॉक अबाउट अ फ्यू एक्सपीरियंसेस एंड वो कैसे रहे, आपको सबसे ज्यादा अचीवमेंट या बेहतरीन महसूस क्या करने के बाद हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा. यू कैन आंसर यार इट हाउएवर यू वांट. मैंने बहुत सारी चीजें की हैं और बहुत सारी चीजों में मुझे सक्सेस भी मिली, पर टू बी ऑनेस्ट लास्ट ईयर आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम विद सनत के जिसका टाइटल है मनी प्रोवाइड कल्चर एस्पायर, के यस. जो जो सेल्स होंगी मेरी, उनसे जो पैसे आएंगे उनका हम किसी का जरिए मार्च मदद. तक मदद जी. करेंगे। मतलब मैं क्या करूं यार, तो उसकी एक अचीवमेंट इस बात की है टू बी ऑनेस्ट कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मालिका कि उसने मुझे इतना सेलेक्ट किया या मुझे इतनी हिम्मत दी या मुझे वसीला बनाया कि मैं ये कर सकूं। जी. और लास्ट ईयर You आई started it in स्टार्टेड COVID. मुझे आई In स्टार्टेड COVID. इन कोविड, हाँ आई स्टार्टेड लास्ट ईयर इन जुलाई, और Hmm. मैंने जून में तक था मेरा इरादा, पर बीच में फिर दोबारा कोविड की ऐसे काफी प्रॉब्लम्स रही, तो आई डिसाइडेड कि मैं इस साल कंटिन्यू करता हूँ। और आई गेस ये मेरे Amazing. लिए Amazing. बहुत बड़ा सक्सेसफुल मेरे लिए मार्क रहा कि मैं जितना भी शुक्र करूं खुदा का, कम है कि उसने इस काबिल समझा या मुझे उस काबिल जी. बनाया
जी। कि मैं एक एक उसके दी हुई चीज को सिर्फ पास ऑन कर सकूं। 100 नहीं, इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आप बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं कि इफ गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद समथिंग वी शुड बी गिविंग बैक। एंड वी डोंट नो हम किसके लिए वी आर अ सोर्स ऑफ, मतलब अल्लाह मैंने हमारे लिए लिखा है कि हम उनकी मदद करें। वी आर जस्ट एज यू सेड वी आर जस्ट द जरिया टू रीच देम, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू टेक दैट इनिशिएटिव, क्योंकि लोग करते तो हैं, बिल्कुल करते हैं, बट आई थिंक जिस तरीके से आपने इसको you also put it out there, तो that also serves as inspiration for people to see कि you know एक रिमाइंडर होता है कि ये हमें भी करना चाहिए। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज है। एंड कोविड टाइम पे आपने एक और चीज की थी, वो ये था कि काफी आर्टिस्ट को एक सरप्राइज मिला था, एक सरप्राइज एचिंग फ्रॉम मोहम्मद जीशान इन द मेल, यू नो इट वाज सो एक्साइटिंग। कैन यू से समथिंग अबाउट दैट? मेरे पास भी अभी ये लगा हुआ है पीछे, मैं यार भी दिखा नहीं सकती इतना कैमरा। वो एचिंग नहीं, लेजर स्कोरिंग। लेजर स्कोरिंग, सॉरी हाँ, सॉरी, लेजर स्कोरिंग। तो यार टू बी ऑनेस्ट उस टाइम इतना ज्यादा, जिस टाइम ये लॉकडाउन चल रहा था लोग बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। अगेन वो टाइम भी था, बड़ी गलत बात है मगर मैं कर रहा था। मैं डेली जाके कासिम भाई के पास बैठता था, चाय पीता था और आ जाता था। और बहुत सी दफा हम छुप छुप के पुलिस से पी रहे होते थे, कैसे भी, मतलब डेली उनके पास मेरा जाना जरूर होता है। ओके, आ, तो अमेजिंग। तो मुझे लगा कि यार एक एक खास किस्म की दूरी भी आई हुई थी आर्टिस्ट में, और एक अजीब सी मायूसी भी थी कि जैसे आर्टिस्ट डिसकनेक्टेड होता जा रहा। फिर वो ये था कि ऑनलाइन सब जा रहा है, तो यू नो समझ नहीं आ रहा था कि वो डिस्टेंस किस तरीके से कम होगा। और वो डिस्टेंस सिर्फ आर्टिस्ट का नहीं था, हर इंसान का हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई डिसाइडेड कि यार सबको जिस तरह से वो पुराना दौर था, वो ईद कार्ड भेजते थे ना, ईद आती थी एक ईद कार्ड भेजा जाता था। एग्जैक्टली। तो यार सबको एक 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 ऐसा आर्ट वर्क अपना भेजता हूँ, या एक इट्स जस्ट लाइक कि यार वी आर स्टिल टुगेदर, हम साथ हैं। एक ओह तो दैट्स सो नाइस। वो आई स्टार्टेड। उसमें बड़ा एक अच्छा मजे का सीन हुआ। आ, रात को कोई मैं समझे 8:30-9 बजे मुझे एक कॉल आई, और एक था, आपने बोला आप ये बात कर रहे हैं? मैंने कहा "हाँ, मैं बात कर रहा हूँ"। तो उनका ये सवाल था, आप मेरी बेटी को कैसे जानते हैं? मैंने कहा आपकी बेटी कौन है? कह रहा तुमने भेजा है भाई, तो तुम बताओ तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा आपकी बेटी का नाम क्या है? कहने लगा तुम्हारे नाम से ये फूल आया हुआ है। अच्छा, अब उन्होंने जब कहा कूल। फूल आया हुआ है, ओह उसमें फूल बनाओ। अब मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने किसकी बेटी को फूल भेज दिया भाई? मैंने कहा मैंने दैट सर इज कोई फूल। कह रहा हिलेरियस। आपका एड्रेस चाहिए? मैंने कहा जी मेरा एड्रेस चाहिए। आपका नंबर ये चाहिए? मैंने कहा नंबर भी मेरा यही है। मैंने कहा आप अपनी बेटी का नाम तो बताएं। कह रहे नहीं, आपने भेजा तो आपको पता होगा। अच्छा, मैंने कहा दिस अच्छा इज आपको कोई ये तो नहीं हिलेरियस। लगा? तो उसमें बोला उसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। वो लिखा हुआ नहीं है जैसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर मैंने उनको उनसे बात की, मैंने कहा एक काम करें, आप मेरे दैट इज सोशल वेरी मीडिया पे फनी। जाएं, और सोशल मीडिया पे जाके देखें, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को भेजा। मैंने कहा फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो बेटी है वो आर्टिस्ट होगी, या आर्टिस्ट बन रही होगी, आर्टिस्ट बनने वाली होगी। तो मैंने तो फिर वो ऑब्वियसली मैं कहना, शायद उन्होंने बैठे बैठे ऑनलाइन गए, देखा जो भी कुछ बात हुई, तो देन दैट्स वो वेरी रिलेटेड, बट फनी। इट वाज लाइक That is so funny. This I did not expect. This is just really really funny. अच्छा, उन्होंने probably पैकेज खोल के चेक कर लिया होगा किसकी तरफ से आया है, nothing there. और that is a very very funny story. Amazing. अच्छा, अब आपका ऑन गोइंग, हमेशा आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं एंड you're always you know very active in the art world or coming up with something. So अभी कोई upcoming project ऐसा है जो आप mention करना चाहेंगे that you are doing, that you're working on currently, that is significant? And I think इसके बाद हमें थोड़ा सा केबी के बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि we skip that. तो let's start from this. कि आप any project you're working on that you'd like to talk about, or is it all a secret right now? यार सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है। एक तो मैंने अभी रिसेंटली किया था, वो अगेन कोरोना से रिलेटेड ही, बिकॉज पहले मैंने भेजे थे। इस दफा आई डिसाइडेड कि जिसने भी वैक्सीन की लगवा ली है, बिकॉज आई Oh वांटेड कि yeah, लोग वैक्सीन लगाएं ज्यादा से ज्यादा। सो yeah, आई yeah. डिसाइड कि यार मैं उसको अपना काम जो है वो दूंगा। एंड Oh आई yes. गेस मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक बात कहना चाहूंगा। बहुत से लोग ऑब्वियसली दे आर लिविंग इन अनदर सिटी, वो अक्सर मुझसे बोलते हैं कि हम काम
हमें काम चाहिए, और मैं बोलता हूँ आप सनत से ले लें, बोलते हैं हम कैसे लेंगे जाके। तो यार इसका जवाब तो ओह मेरे पास भी नहीं होता, बिकॉज पहले मैंने कोरियर भी सॉरी पोस्ट किया था इस या दफा, बट आई एम ट्राइंग कि मैं डिफरेंट सिटीज तक जो है वो कोई एक पॉइंट मिल जाए जहां पे मैं भिजवा सकूं। तो ओके होपफुली ओके इन नियर फ्यूचर आई विल ट्राई कि मैं लाहौर, इस्लामाबाद कहीं जगह ऐसी हो जहाँ पे भेजा जा सके। अमेजिंग आ, ठीक है और लास्ट टाइम जो और हुआ था, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर आई मस्ट शेयर, जब ये मैंने पोस्ट किए, हम्म कश्मीर क्या, फाटा क्या, पाकिस्तान में हर सूबे में सब जगह पहुंच गया सिवाय इंटीरियर सिंध के। व्हाट एक पोस्ट नहीं मिली इंटीरियर सिंध में जो है। ओह और गायब हो गई और मतलब वापस भी नहीं आया आपके पास कराची के भी कुछ इलाकों के अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिन पे वो पोस्ट नहीं मिली। वाह बलूचिस्तान के छोटे छोटे शहरों में जाके पहुंच गई वो। वाह आपको वापस मिला वो काम या नहीं नहीं, वापस तो था ही नहीं, वो जो एक ऑर्डिनरी मेल थी जो जिसके थ्रू मैं भेज रहा अच्छा था, अच्छा सेम अच्छा पोस्ट ऑफिस आई यूज्ड। बट हम्म अच्छा बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि ये ये क्या हुआ हम्म। अच्छा और बहुत सारे आर्टिस्ट इस बात से नाराज भी हुए। एक बल्कि वाजिद ने जब पोस्ट लगाई कि उसको मिल गया, तो मैंने कहा वाजिद ढाकी का है ना, तो वाजिद ढाकी वाला, तो मैंने कहा शुक्र है वाजिद को तो मिला। और जब उसने पोस्ट लगाई तो मैंने देखा नीचे उसमें गुजरात का एड्रेस लिखा हुआ था, क्योंकि वो गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। ओ ओहो मिसहैप्स थोड़े से हम्म बट सर कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वो हम थोड़ा इसके बाद लेते हैं बट हम्म। briefly can you tell us about your KB experience you know that was a very very major curatorial experience was it your biggest curatorial experience to date and उसमें what did it entail मतलब काफी सालों की मेहनत थी वो and then execution in itself तो कुछ हाइलाइट्स आप बताना चाहेंगे उसकी प्रेपरेशन में एंड एग्जीक्यूशन एंड पोस्ट पोस्ट में यार इंटरेस्टिंग चीज, आई नो टाइम फ्रेम तो ऑलमोस्ट 2 साल लगे उसको एग्जीक्यूट करते करते। हम्म और उसमें काफी सारी ट्रैवलिंग शामिल थी, इधर भी चीजें शामिल थी। पर उसमें जो हम पहले भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक ही मेरा टारगेट था कि हम वहां ले जाएं आर्ट को जहां पे हमें लोगों को इनवाइट ना करना हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आर्ट से ताल्लुक ना रखते हैं। जी जी यू नो समटाइम्स क्या होता है कि आर्टिस्ट को तो बाय डिफॉल्ट इनविटेशन चला जाता है, या वो बाय डिफॉल्ट देख रहा होता है, तो देर आर जी फ्यू पीपल जिनका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता। आई रिमेम्बर जब हम लोगों ने सिर्फ इरफान गुल डायरी का मुझे याद है कि हम लोगों ने वो खोला बॉक्स जू में। तो वो आई थिंक थर्सडे या वेडनेसडे वुमेन्स का डे होता है, ओनली वुमेन्स डे होता है, तो वो उफ, बच्चों का और औरतों का भरमार आया था जो उनके साथ तस्वीर खिंचा रहे थे। वो जो उसने वो बोर्ड्स बनाई थी, उसका समथिंग पिकनिक समथिंग करके था टाइटल, मैं भूल रहा हूँ इरफान, सॉरी। मगर ओके मगर इट वाज सो अमेजिंग कि वो किस तरह से उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, या उसको देख रहे हैं, या उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इस वाह हद तक कि आपको आर्ट को बचाना पड़ गया अपने, कि अच्छा ये नुकसान ना पहुंचा दे। सो यू नो, या हम जब बिन कासिम पार्क में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एक रिमेम्बर एक बच्चा आया और उसने बोला कि सर ये शूट हो रहा है, ये शूट कब शुरू होगा इसका, कौन है ये? अच्छा तो हम उससे मजाक करने लगे कि हाँ इसमें हीरोइन कौन है, फलाना कौन। सो यू नो दीज आर द स्मॉल एरियाज जो कि मुझे लगता है कि किसी भी बहुत बड़े आर्ट की राइटिंग से, या हम्म किसी बहुत बड़े रिव्यू से, या किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट के काम से मच 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 मोर जी लार्जर, कि जी एक वो इंसान जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है आर्ट में, जी जी स्पेशली कंट्री लाइक अस जहाँ पे बहुत कम म्यूजियम्स हैं, बहुत कम पब्लिक आर्ट की प्लेसेस हैं, वहां पे वो उसके पास वो मौका है, वो आर्ट के साथ एंजॉय कर रहा, आर्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा, बिल्कुल क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ आर्ट जो जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हो, देयर वाज लॉट ऑफ आर्ट जो कि आपने सिर्फ देखना है। तो यू नो वो जो खुशी है मुझे, वो जो मैं
आई मस्ट से कि मेरे लिए वो बड़ी प्राइड की बात थी कि उस इंसान तक मैं आर्ट लेके आऊं जिनको हम, जो हमारा पहला तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि हम उनको समझाएंगे कैसे, हम उसके साथ समझाएंगे बात कैसे करेंगे, या हम उसको जी। आर्ट की जो एक्सक्लूसिविटी की बात करते हैं। सो हम्म। अगर वो नॉन आर्टिस्ट, एक बंदा जो सिर्फ अपने बच्चों के साथ पार्क में आया था और वो आके अच्छा बुरा कह के चले जाता है, तो इट्स far bigger than that review which I'll get the दुनिया के सबसे बड़े आर्ट के जर्नल में। बिकॉज बिल्कुल वो जो भी, अगर किसी बड़े से बड़े जर्नल में कोई राइटिंग लिखता है ना, वो दैट इज देयर वर्क, वो आर्ट से ताल्लुक रखते हैं, आर्ट पे लिख रहे हैं। ये एक नॉन आर्टिस्ट था जिसने आया और आपके आर्ट के साथ इंटरेक्ट कर लिया, आपके आर्ट को देख लिया, आपके आर्ट के साथ खड़ा हो बिल्कुल गया। सो बिल्कुल दैट बिल्कुल। वाज माय अमेजिंग। एम, जो कि मैंने Sir, किया। I'm just quickly plugging my charger because my phone's about to shut. So you हम्म। can just give me 10 seconds. ये गलत चीज हो जाएगी अगर ये बंद हो गया। Let me just आई check. थिंक मेरी वाली कितनी बैठा, मेरी वाली बैठ बहुत। So it was quite 80% battery, but this happened. Anyway, it should be fine now, inshallah. Okay, so sir, अब इसके बाद any other thing you'd like to mention about KB? Yeah, मतलब meanwhile, and then we move on to the next segment. तो अब एक चीज है जो कि मुझे लगता है कि मैं जरूर मेंशन करूं कि इसको करने में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट थे, बिकॉज दे एक्चुअली केम फॉरवर्ड और मेरे साथ वो एज एन फैमिली खड़े हुए। जी और बड़ा अच्छा रहा क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मेरे जूनियर थे, कुछ मेरे मतलब फेलो आर्टिस्ट थे जो मेरे साथ के थे, मेरे साथ पढ़े, कुछ टीचर्स थे, जो ना इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस के कब आपने आर्टिस्ट से बात करते करते स्टूडेंट बन जाना है उनका, जी कब उनको बोलना अबे यार आजा यार कर ले, और कब आपने कहना अबे ओए चल काम कर। सो यू नो दैट। और आई exactly मस्ट टेक द नेम exactly ऑफ बोथ ऑफ द असिस्टेंट क्यूरेटर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आई गेस बहुत yeah. दे वर द वन जिनकी वजह से ये हुआ, वो थे मुझे बताते करना क्या है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे तो खुद नहीं पता होता Amazing था। amazing. जिनमें नूर बहुत अहमद एंड राबिया अली। Rabiali, जी. Brilliant, brilliant. That's amazing, sir. So that was an amazing feat that you guys pulled off really well. और उसका again congratulations post it happening. Or sir, maybe like let's see if you should talk about it now or not. But your acting experience, like just a quick mention about how that was, because that's again I know आपने बताया था कि आपने शायद पहले भी एक दफा acting की थी 2008-9 में किसी point पे, लेकिन this was an experience that is also taking you to film festivals, you know, so it's quite a successful thing. And Hamza Bangash, you know, was the director, and then आप पूरे चीज के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे, a little bit maybe? हाँ, मेरे ख्याल में इस एक्टिंग में जो डायरेक्टर था वो कोई और था। Oh sorry, कौन? मतलब मूवी में जब मैं एक्ट कर रहा था तो डायरेक्टर कोई और था। यूजुअली मैं Okay. खुद ही डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, कर तो मैं एक्टिंग ही Okay. रहा होता हूँ। आ, नहीं यार, it was good। और आई स्टिल रिमेम्बर आबिद मर्चेंट की कॉल आ रही थी, पर जो आवाज थी वो राशिद साहब की थी, राशिद मकसूद थी। और Okay. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें आके मतलब जो भी रोल करो, जो एक्ट करो, बिकॉज मेरी शायद शक्ल और जो जिसपे ये मूवी बेस्ड है, नॉर्मन डिसूजा, उनकी जवानी की शक्ल, ऑल्दो ही वाज वेरी हैंडसम गाय, वेरी पॉपुलर रॉक स्टार, पर कहीं शबाहत आती थी, तो उसकी वजह से फिर मैं जब आया तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। आई गेस ड्यूरिंग ऑडिशन आई डिसाइडेड कि या तो मैं ना कर दूं, और अगर दे रहा हूं तो मैं ऑडिशन भरपूर तरीके से दूं। एंड Okay. whole team was really good because someone like me जो कि नॉन आर्टिस्ट और नॉन एक्टर है, उसके लिए करना और शायद मुश्किल हो Um, सकता था, मगर Abid has जो requested to be in this live video. Sorry, I'm cutting you off. हाँ हाँ I've got a request, so let me just add him. I'm thinking he has something to say.
Okay. Yes. I hope it goes fine. इसका क्वेश्चन है आबिद मर्चेंट। नहीं जी, वो उनको लाइव वीडियो में ऐड होना था, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आबिद भाई? हाँ How बस are ठीक you? ठाक। मैंने कहा कैसे? कि Nice to have you here. फिल्म की बात हो रही है तो मैं भी आ जाऊं बीच में। बिल्कुल, तो वेलकम मतलब वेलकम प्लीज। मुझे बताया आबिद भाई, आपका दिल नहीं भर रहा आजकल, जो इतनी सारी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बस वो अभी कैमरे के सामने। मेरी 12 दिन की वर्कशॉप अभी खत्म हुई है 9 बजे। अच्छा, तो मिस अभी कर रहे थे आप? हाँ, उसके बाद चाय पीने में गया था और अभी वापस आया तो ये लाइव मैंने देखा और फिल्म की बात हो रही थी तो मैंने कहा आर्ट की बात होती तो मैं बीच में कभी भी रिक्वेस्ट नहीं भेजता। Great. Please add to this conversation. Tell us about that experience. Everything about it. अच्छा, तो ऐसा था कि भाई वो जो जिस रियल लाइफ कैरेक्टर पे हम ये फिल्म बना रहे थे, नॉर्मन डिसूजा, उसकी शक्ल और जीशान की शक्ल बिल्कुल सेम। मतलब जीशान जैसे आज लगता है, नॉर्मन शायद 40 साल पहले वैसे लगता था। मतलब जीशान का ट्विन ब्रदर या जीशान नॉर्मन का ट्विन ब्रदर। ठीक है, तो जब हम एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे वो, और कुछ 2 दिन हमारे ऑडिशंस के हो गए थे और हमें नॉर्मन जैसा कैरेक्टर हमें पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल रहा। तो राशिद मकसूद हमीदी was a big art enthusiast. He's been collecting art for so many years. He was my co-executive producer in the film. He said कि जीशान और नॉर्मन की शक्ल, मैं तो नॉर्मन को मिला भी नहीं हूँ, मैं तो उस जमाने में था भी नहीं, उस क्लबिंग के टाइम पर और उस डिस्कोर्स के टाइम पर और उन बार्स में जहाँ नॉर्मन प्ले करता था। बट राशिद मकसूद ने नॉर्मन को उस जमाने में देखा हुआ था। उन्होंने कहा जीशान एक्टिंग करेगा। मैंने कहा मुझे क्या पता, पूछे ना। कहते मेरे पास नंबर नहीं है, तो मेरे फोन से कॉल किया और मैंने कहा आप बात करें, मैं बीच में नहीं बात करूंगा कुछ भी। तो जीशान was called for an audition and he said हाँ मैं आता हूँ ऑडिशन देने के लिए। तो इन्होंने ऑडिशन उस दिन, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं, इन्होंने 3 जो हमने शॉर्टलिस्ट की हुई थी फीमेल लीड्स, इतने तीनों के साथ ऑडिशन दिया उस दिन। तो Great. I'm sure he enjoyed that very much. अच्छा, फिर उसके बाद एक्टिंग तो आती नहीं है इनको बिल्कुल ही, क्योंकि ये अब क्या बोले, जो भी एनीवे। तो इनको एक्टिंग सिखाई फिर हमजा ने, रिहर्सल बहुत सारी की। हमजा वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म, तो इन्होंने बड़ी रिहर्सल की, कई महीने रिहर्सल की और उसके बाद एंड प्रोडक्ट बड़ी मजेदार निकली। और बहुत जल्दी हम किसी तरह से वो पाकिस्तानी ऑडियंसेस को वो फिल्म जरूर दिखाएंगे इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। मतलब होपफुली आई एम ट्राइंग कि इस साल हम एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसकी स्क्रीनिंग करें। तो उसमें इनका कैरेक्टर इंटरनेशनल लेवल पर भी पसंद किया गया। कई क्रिटिक्स ने फिल्म के तो पॉजिटिव रिव्यूज अपनी जगह पर हैं। It went to some very big festivals like Locarno. It competed for the Pardi di Domani. Locarno is one of the top 10 festivals in the world. इस साल पाम स्प्रिंग्स में उसका US प्रीमियर हुआ। So yeah, his acting was loved by all. मतलब Zishan's character, the way he portrayed it, was enjoyed by all. And I had the opportunity to watch it on the big screen also at Palm Springs, USA. Amazing. I saw it on the laptop and I could tell that he was very in the zone. Matlab, I was forgetting that this is Sir Zishan, you know. He was Lenny in that film. So he was Lenny. He was the character. He was the character. So पहले फिर वो बैठ के अपने फिल्म मैंने एक शॉट भी लेकर जीशान को भेजा कि मैं दोबारा देख। That's amazing. No, I would actually love to have a session with you as well after this and discuss, you know, your foray into short films and how that happened and बहुत सारी चीजें आपसे भी discuss। Actually तो मैं ज़्यादातर फीचर्स पे काम कर रहा हूँ। शॉर्ट फीचर्स, ओके, ठीक है, तो वो भी मुझे आपके साथ करना है डेफिनेटली इंशाल्लाह। चले अब It's been Thank you so much for coming on board and giving this information and it's been great. पीछे जीशान का एक पुराना नजर आ रहा होगा मेरे बेडरूम में रिफ्लेक्ट। Amazing. दिल है अमेरिका का फ्लैग।
pretty cool. और लेकिन मेरे उसमें ये खंजर है, भी मुझे है। सर ने गिफ्ट किया था वो पता नहीं दिख रहा है या नहीं। So we all have a bit of Mohammad Zishan in our lives. नहीं, मेरा तो मैंने अपना बेडरूम रीडू किया है, तो किसी ने आके हाँ। कमेंट किया जिसने मेरा बेडरूम देखा कि ये मोहम्मद जीशान म्यूजियम है। तो इस वक्त मेरे बेडरूम में सिवाय मोहम्मद के कोई और पार्ट नहीं लगा हुआ है। Oh तो wow. थोड़ा सा मैं आपको घुमा के दिखा। Wow. Oh my God. It is only Mohammad Zishan's art in my bedroom. Amazing. Amazing. And the revamped place looks really good. चले, thank you. So we'll have a session Thank separate. you. Thank you so much for coming on board. Thank you. आर्ट की मुझसे बात ना कीजिएगा क्योंकि मुझे आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। आपके नए कॉलेज के बारे में बात करेंगे। हाँ, मुझसे कॉलेज के बारे में बात कीजिएगा, आर्ट के बारे में। चले, ओके। चले, okay. Okay, thank you, thank you. See you. Okay, so How do I disconnect? I think you have to press the cross. I've gone through this before. Press the cross. Can you see the cross on the top right? The cross on the top right of the right. just press that. Just press that. This has happened with me, sir, so I understand the confusion कि कैसे निकलना है वीडियो से. So okay, now let's move on to the rapid fire round. And this is, I know, not a very original round, लेकिन मजा आता है इस round में. तो इसके ये जो सवाल है, मिलेगा? सर हैम्पर जब हम मिलेंगे तो फिर तब मिलेगा, वरना तो हम मिलते ही नहीं है, तो डेफिनेटली तब मिलेगा. लेकिन अभी के लिए नाउ इट्स अप टू यू. वैसे तो क्विक आंसर्स. ओ माय गॉड, 9% बैटरी. Hold on, sir. I need to fix this because I cannot lose this conversation. Okay. Oh, what is happening? This cannot be 9% battery. Okay. God save this. Okay. So now let's. So now you can answer these quickly. Okay? Just for the because अगर battery मर गई तो it's gone. So sir, there are 20 questions. You can answer them however you want. Okay. Who's your favorite actress or actor and movie? Manoj Vajpayee, Adil Hussain, and movie is आंखों देखी. Oh wow, okay. अब the thing is कोई और दिन होता मैं आपसे पूछती क्यों क्या, लेकिन unfortunately थोड़ी सी time limitations हैं. अच्छा, question 2. If you were on a desert island, name one person and 2 things you would like to take with you. I would like to take my friend Asif. Okay. और he's from Irpokast. और Okay. चाय का सामान और मोबाइल विद डेटा होना चाहिए इसमें बहुत सारा, मतलब वो बस. Very good. Smart. So you're going to live on tea basically. Okay. One person dead or alive you would like to take for dinner. लेडी गागा. Wow, amazing. चले वो तो हो भी सकता है. This is totally possible. Okay, one funny or embarrassing situation you'd like to share. वैसे तो लंबा आंसर है लेकिन आप इसका कोई शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं if you wish. यार मैं जब पहली दफा लंदन गया गेस्टवर्क्स की रेजिडेंसी पे, आई वाज गिविंग माय प्रेजेंटेशन, तो आई वाज टेलिंग देम कि मैं बिफोर एनसीए में मुर्गे लड़ाता था. तो मैं ऑब्वियसली जितनी मेरी इंग्लिश थी, अभी इतनी नहीं है मगर उस टाइम तो बिल्कुल ही कम थी, तो मैंने आई सेड कि बिफोर एनसीए आई वाज अ कॉक फाइटर. So everyone started laughing and I couldn't understand कि क्या हो रहा है, क्यों हंस क्यों रहे सब. क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये एक एक्शन चीज होती है. You must be so confused. Oh my god, hilarious. Okay, what time of the day are you most creative? I think we know the answer, but you can tell us. रात, ठीक है. Okay. Advice you would give your younger self. यार अपने सीनियर के चाय वाले बन जाओ. अच्छा, इंटरेस्टिंग. यानी कि थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं इसमें, तो मुझे पूछना पड़ेगा. इसमें पूछना पड़ेगा. चलिए कोई बात नहीं. Okay, whatever people get. हाँ बोले. I was just saying because क्या हो रहा है कि हम लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ बैठना छोड़ दिया. और जिसकी वजह से, और मैं ये कह रहा हूँ कि सीनियर के पास जाके अपना सिर्फ काम नहीं दिखाना, सीनियर क्या कर रहा है उसके साथ बैठना. सीनियर से मुराद वो जो भी हो सकता है, वो आपके मेंटोर की शक्ल में हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है. स्पेंड टाइम विद देम. ये जो आधे घंटे की अपॉइंटमेंट में काम दिखाना है ना, इसमें नहीं बन पाएगा. अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. सर, व्हाट स्केयर्स यू?
One word. बीवी. Best answer. A thumbs up. Okay. A work or project you're most proud of, सिर्फ उसका नाम ले लें. Money provide culture aspire. Okay. The most special thing about Pakistan. Mohammad Zishan born in Pakistan. Best answer again. I love it. Okay. And the last question is name one dream of yours. यार देखो ये मेरा नीम ये जो ड्रीम है ना ट्रायंगल है और इसका ट्रायंगल का होना पूरा बहुत जरूरी है तीनों का ऑप्शन. Triangle. Okay. हाँ ये बहुत है. एक तो मैंने येल से मास्टर करना है मगर स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप येल की होनी चाहिए कोई और थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए. Wow. Second, I want to be a successful representative artist by Gugosian. Ooh, okay, amazing. Third, I want to be one of the jurors for Miss World. Wow, amazing. These are very interesting. First दो तो समझ आते हैं. Third वाला तो is very unique, but I can totally see it happening for you. तो सर अगर आप power of manifestation क्या मतलब यार तुम दो वालों पे डाउट कर रही हो? नहीं दो वाले तो मुझे वो तो हो ही जाएंगे. ये वाला तो और exciting है because it's a, but I can totally expect to see you there. So आप power of manifestation में अगर believe करते हैं तो ये आप अपनी जिंदगी में manifest करेंगे I'm sure and inshallah it will happen. So we are rooting for you and I'm most excited about the third one. The thing is that now I want to know from you sir because I don't know how much my battery is alive right now. Would you like to take questions or should we there was one sorry if you have to say anything आप बोलें फिर मैं एक question का आपसे किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है. एक है सवाल वो था शाहीन ने पूछा था वो ये कि do we need to worry about our do we need to choose sorry मैं भूल रही हूँ but our buyers मतलब as artists क्या आपको उसमें discriminate करना चाहिए कि हमें किसको sell करना है किसको नहीं sell करना चाहिए या just be open मुझे लगता है choose करना चाहिए किसके through sell करना है किसके through sell करना है but not who is buying that's not a thing but I think if you choose a right gallery because I believe कि हमेशा गैलरी के थ्रू बेचना चाहिए. I believe मैं प्रैक्टिस भी वही करता हूँ तो फिर अगर आप फिर मेथड में फिर वो बाकी उसका काम होता. ठीक है. So I don't let me see if there are any questions. If there are any questions please ASAP अगर आप type कर लें because I am very keen that this interview is saved as an IGTV and Shaheen is asking what makes a gallery the right gallery. हाँ गैलरी तो है या जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. मोस्ट ऑफ द टाइम इज दिस थिंग इज हैपनिंग कि हम किसी अच्छी गैलरी को या किसी और आर्टिस्ट के लिए अच्छी गैलरी को समझते हैं अच्छी गैलरी है. अच्छी गैलरी वो है अच्छा गैलरिस्ट वो है जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. बिल्कुल that makes sense and आपने बाल क्यों कटवा दिए? That's Adila's affair. But I think it suits you though. My personal opinion. हाँ किस्मत में लिखा था कि बाल कटने उस दिन कट गए. Okay. So with this, I think this should be the end of the session for various reasons. Even though pata bhi nahi chala, 1.5 hours flew by, and I really want to thank you because it was very very. Sorry, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं इसलिए कह रहा था पता नहीं वैसे तो इतनी कंट्रोवर्शियल वो मतलब वो कंट्रोवर्शियल कह रहा हूँ सॉरी इतनी सीक्रेट बात नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे उसमें नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में. ये एक नया रोल कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने बाल कटवाए. एक नया क्या था? नया रोल कर रहा हूँ मतलब एक कैरेक्टर कर रहा हूँ सॉरी नया कैरेक्टर कर रहा हूँ. Really? Oh, that is exciting. That is very exciting. That's very exciting. इससे ज्यादा नहीं बता सकता बस. ये तो बहुत अच्छी बात बताई. अब the thing is आप ये सवाल जो देख रहे हैं can you see them? How does one know it's still working? एक आ रहा है कि आर्ट लॉबी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी लॉबी है मैं जरा देखूं क्या किसने सवाल किया है. I mean generally I think वो आर्ट में जो लॉबीज होती हैं is there anything you'd like to say about them? And
अच्छा, एक और सब। नीना क्रिएटिव आर्ट्स, इन्होंने कोई सवाल किया है जो कि मुझे दिख नहीं रहा, ओके नीना, सॉरी। मैं बताती हूँ, सॉरी मैं इसमें चेक करती हूँ। उन्होंने कहा है कि कैन यू टॉक अबाउट हाउ टू प्रोसीड एज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। ये एक लंबा मतलब जवाब है इसका। नीना, आप हो या जिसने सेल्फ टॉट ना भी हो, जो भले ग्रेजुएट कहीं से किया हो, जो मैं बार बार कहता हूँ कि बिकम अ चाय वाला, आर्टिस्ट की गैदरिंग्स में बैठे हैं, आर्टिस्ट के साथ बैठे हैं, स्पेशली सीनियर के साथ, फाइंड आउट योर मेंटोर। मेंटोर जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा नाम हो, कोई बड़ा आर्टिस्ट हो, मगर वो जरूरी है जिसके साथ आपकी अच्छी बातचीत हो सके, अच्छी केमिस्ट्री हो। एंड मैं बार बार ये दोहराता हूँ बात को, 5 महीने 6 महीने आपके काम पे बात ना करे, कोई बात नहीं, मगर आप उसका काम देखने, उसका बिहेवियर देखना चाहते हो, उसको हम्म। उसकी किए हुए काम से, उसकी की हुई चीजों से लर्न करने जाते हो। कनेक्शन जो है, ये जो डिसकनेक्शन हुआ है ना, जब से प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। अगर आप थोड़े से पीछे भी चले जाओ तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं आ रहे थे, मगर वो एक आर्ट सर्कल, जैसे इकबाल मेहदी का नाम लिया जाए, उनके इतने सारे स्टूडेंट हैं जो सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं, और उस टाइम भी उनके साथ काम होते कर मतलब sorry, उनके साथ काम कर रहे थे, उनके स्टूडियो में जाते थे। सो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स। And sir, there's someone skj_art says, how does one know they're working all right? There are times when I'm working and sending out work to galleries. Sorry, properly dikh nahi raha. There are times when I'm working, I think yahi sawal hai, and I don't get any responses. It's a little discouraging what to do. ये जब किसी 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 गैलरी में भेजते हैं काम, तो वो इज दिस अ क्वेश्चन? आई थिंक वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं काम बनाती हूँ और गैलरीज को भेजती हूँ, तो मैं बहुत उसमें मेहनत करी हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहे हैं। इस केस में क्या करना चाहिए? देखो, जवाब आते नहीं आते, ये दोनों चीजें की पॉसिबल है, पर कभी हम एज एन आर्टिस्ट अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर करें कि क्या हमने जिस गैलरी को सेलेक्ट किया, क्या वो रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, कि हमारा काम का जो स्टाइल है वो उस गैलरी के काम से मिलता जुलता है? क्या हमने कभी एफर्ट करी कि उस गैलरी में शानजे का शो हो रहा तब भी हम जाएं, या सिर्फ हमने सोचा कि नहीं, जब हम ईमेल कर देंगे तो दैट्स इट, और उसने हमारा देखो, ये पूरी एक बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग को बनाने के लिए काम के साथ साथ रिलेशन भी आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही। आप वो अगेन देखो, सारी प्रोसेस वहीं से शुरू होता है कि आप अपने सीनियर के साथ हो, तो वो जो उनका सवाल का पहला हिस्सा है कि वो सही कर रहे हो कि नहीं। व्हेन यू कीप समवन एज ए मेंटोर, तो फिर आप मेंटोर का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा वर्ड है। तो फिर आप उसकी बात पे बिलीव करते हो, तो फिर समझते हो। फिर दूसरी बात है कि मेंटोर ऑब्वियसली इट्स वर्किंग, तो वो जाते जाते आपको बताएगा कि बेटा किस रास्ते से जाओगे तो यू विल रीच द योर डेस्टिनेशन बिल्कुल ऑल्सो। हम लोगों बिल्कुल। ने वो मेंटोरशिप को बिल्कुल हटा दिया है, अपनी सीनियरिटी को बिल्कुल हटा दिया है। एंड वी आर जस्ट कि हमने स्टूडियो में बैठ के काम करा और एक टूल आ गया, ईमेल इसके थ्रू भेज दो, अब ये जवाब देना लाजिम हो गया। जरूरी नहीं है कि वो जवाब आए। एफर्ट आपकी तरफ से कितना है, कितना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है। So building relationships is important, इट्स networking is वेरी important, इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी and इंपॉर्टेंट। mentorship is very important. बिल्कुल in an art career I think वही है कि सिर्फ आर्ट बना के unfortunately ऐसे चलता ही नहीं है, and this is something I think I've learned, everybody who's working they've learned over time. एंड वन बहुत थिंग इज जरूरी। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर गैलरी जो है वो एक बिजनेस वेंचर है। उसमें एक एक दिन, मतलब अगर गैलरी है वो मंथली एक रेंट देती है, बिजली का बिल है, उसके जो स्टाफ है उसका बिल है। अगर आप काउंट करोगे तो आप 10 दिन का शो नहीं मांग रहे हो, आप सर्टेन अमाउंट भी उससे मांग रहे हो। तो वो बिल्कुल। सर्टेन इन्वेस्टमेंट आप पे कर रहा है, तो वो उस इन्वेस्टमेंट का इजिकल टू उसको चाहिए। जरूरी नहीं कि वो काम बेचना या कुछ, मगर आपकी सीरियसनेस, आपकी डेडिकेशन, वो सारी चीजें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। So I think these are the questions that we've had, and with that, I want to thank you so much, Sir थैंक यू। Zishan, for taking out 1.5, more than that, hour for this session. बहुत मजा आया आपसे बात करके, and thank you to Abid Merchant as well for joining and adding a very interesting points. And with this, I will say Khuda Hafiz. This session is going to be, inshallah, saved. I hope things will go fine right after I close this. It's going to be saved as an IGTV video, and it's going to be uploaded on my profile. And all the best for all of your upcoming ventures. And thank you to everyone who listened in. Appreciate it so much.
and looking forward to another session after 2 weeks. And Khuda Hafiz. Bye, बहुत sir. शुक्रिया शानजर, बहुत शुक्रिया जो सब लोग सुन रहे थे। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। बहुत शुक्रिया। Khuda Hafiz.